Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In our today's lecture we are going to discuss tort part A. Now the part A of the exam focuses on an article. The article for 2026 May and October is called The View from Top, a Visual Intrusion as Nuisance in Fern versus State Gallery by Harry Horan. Now this is a very interesting article because it focuses on a lot of important areas including privacy, nuisance, and those rights which are attached to land. So, we're going to discuss the details about this article, but this is going to be a detailed lecture. I'm going to explain in this lecture what basically part A is, what kind of questions can we expect in the part A. Then I'm going to go into the details of the case, that is Fern versus State Gallery, because the author of the article, Mr. Harry Haran himself does that. So he talks about the material facts of the case. He then talks about the decision coming from the High Court by Manjay's judgment, and then he goes into the discussion of the Court of Appeal, and finally he talks about the UK Supreme Court. But of course, since it's an article, it's a view of the author, so we need to understand how the author has criticized the judgment in itself. Does he agree with this idea of qualifying visual intrusion as a nuisance or not? So that is something that we need to understand. Now, without any delay, let's look at what basically the part A of the exam is. So part A, आपको पता है, it contains 25% of the overall marks. तो आपका it's a fixed question that you have to attempt. So tort के अंदर ना आपके पास बहुत ज़्यादा choices होती हैं. You will get a question on trespass to land. You will get economic loss, psychiatric harm, general question on negligence, vicarious liability, and so forth, or occupier's liability. But there's going to be one fixed question that each student has to do, and that is something called as the part 1 of the exam, right? So 25 total marks hain iske. It comprises of questions on previously seen research articles. So the research article that the examiner gives every year, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस होते हैं. अच्छा, अब ये जहन में रखना कि ये क्वेश्चन एक नहीं होगा. इट्स नॉट गोना बी लाइक EU लॉ और एनी अदर सब्जेक्ट जिसमें आपको वन फिक्स्ड एसे आता है, जैसे ट्रस्ट में भी वन फिक्स्ड एसे होगा. बट व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑफ टॉर्ट, आपका प्रॉपर्टी जैसा पार्ट ए होता है. प्रॉपर्टी में तो आपको एक केस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर एक आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे. सो ये क्वेश्चंस किस नेचर के होंगे? ये 4-5 डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं. कोई इसकी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसने 3 क्वेश्चंस देने हैं, 4 देने हैं, 5 देने हैं. ही विल डिवाइड इट अकॉर्डिंगली. लेकिन एक पॉइंट जहन में रखना कि जो क्वेश्चंस हैं उनकी नेचर डिटर्मिन करेगी कि आपको उसकी कितनी लेंथ में जाना है. उन्होंने कोई स्पेसिफिक मार्क्स का ब्रेकडाउन नहीं दिया हुआ. यू गोना गेट अ क्वेश्चन जो कि ओवरऑल उसके 25% मार्क्स होंगे. सो आई थिंक कि अगर आप इस एरिया को अच्छा सा प्रिपेयर कर लो, यू विल रियली गेट गुड मार्क्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड ऑटोमेटिकली इट सेट्स द टोन फॉर द इंटायर पेपर लेटर ऑन. बिकॉज अगर आपने अपना पहला क्वेश्चन अच्छा कर लिया एंड यू गेट लाइक अ मेरिट और अ डिस्टिंक्शन लेवल मार्क्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको पेपर में स्कोर करना रिलेटिवली ईजी हो जाता है. बिकॉज इफ यू आर देन अटेम्प्टिंग 2 प्रॉब्लम क्वेश्चन एंड मे बी 1 essay in part 2 of the exam, definitely you can score really well. Now, having said that, what is the name of the article? मैंने स्टार्ट में भी बताया, it's written by J. Harry Haran. ऑथर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. जब भी आर्टिकल लिखा जाता है या बुक लिखी जाती है, तो हम आपने नोटिस किया होगा कि लॉ के अंदर हम लोग ऑथर का नाम से बुक को रेफर करते हैं. ऑफ कोर्स हम बुक का नाम भी समटाइम्स नहीं लेते. लाइक फॉर एग्जांपल हम कहेंगे विलियम विल्सन आर्ग्यूज दिस. सो विलियम विल्सन की किताब का नाम कोई नहीं लिखेगा, बट विलियम विल्सन. तो ऑथर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैरी हारन. इसका जो आर्टिकल है उसका नाम है द व्यू फ्रॉम टॉप, The View from Tort, Visual Intrusion as Nuisance in Fern versus State Gallery, MLR 202487 bracket 3 697 to 714. Now this citation is important because it talks about कि ये कहाँ published है. The article would attract 5 to 6 questions and legal issues on the argument raised under the article. So now I hope कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी कि 4-5 क्वेश्चंस होंगे और इसी आर्टिकल से रिलेटेड होंगे. सो आपने इस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है. अब डिटेल में पढ़ने का क्या मतलब है? आर्टिकल तो टोटल 28 पेजेस का है. जो एक कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूँ ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो आर्टिकल की मेन बॉडी तो ज़रूर पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जो चीज़ मिस आउट करते हैं और असल में सवाल उसी से रिलेटेड आते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक लिंक्ड आर्ग्यूमेंट की तरह की गई होती हैं. लिंक हुआ होता है चीज़ें उसके साथ, और वो क्या है? फुट नोट्स, जो आपकी साइटेशन है.
जब भी कोई जर्नल आर्टिकल लिखा जाता है तो जो भी चीज़ उसमें आर्ग्यू की जा रही होती है उसको रिफ़र किया जाता है बाकी चीज़ों के साथ। उसमें बहुत सी जगहों पे तो जजमेंट ही रिफ़र्ड होगी, लेकिन बाकी जगहों पे कुछ ऑथर्स, कुछ और आर्टिकल्स या मिसाल के तौर पे कोई न्यूज़ के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, किसी ने अगर कोई ब्लॉग लिखा है, न्यूज़ लिखी है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इंटरेस्टिंगली आज का लेक्चर जो मैंने डिज़ाइन किया है और इसीलिए इसमें थोड़ा-सा टाइम भी लग गया मुझे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर आपको दिया जाए, ना कि एक शॉर्ट लेक्चर हो। सो कॉम्प्रिहेंसिव में ये चीज़ शामिल है कि आज का लेक्चर सिर्फ जो मेन बॉडी ऑफ द आर्टिकल उसके ऊपर बात नहीं करेगा। आप देखोगे कि जो केसेस ऑथर ने अपनी साइटेशन में रेफ़र किए हुए हैं, जिन आर्टिकल्स को साइटेशन में उसने रेफ़र किया हुआ है, वो मैंने इस आर्टिकल को सेग्रीगेट करके यानी पोर्शंस में चीज़ों को करके एक्सप्लेन किया है। सो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल गेट टू हैव अ गुड होल्ड। और आपका इसका तैयारी करने का तरीका क्या है कि आप एक दफ़ा, 2 दफ़ा आर्टिकल खुद रीड कर लो और उसके बाद दिस लेक्चर कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर रिवीजन। आप इसको फास्ट स्पीड के अंदर जब प्ले करोगे तो जिस तरह से मैंने इसमें सेक्शंस बना के आपको कर दिया है ना, जो क्वेश्चंस या जो आपको जो एरियाज़ जिनके ऊपर उसकी कंटेंशन है, वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। बिकॉज़ ऑथर ने तो उसकी सेग्रीगेशन नहीं की हुई। ज़ाहिर है उसने अपने आर्गुमेंट्स को सेपरेट नहीं किया हुआ। मैंने इसके आर्गुमेंट्स को इन स्लाइड्स की सूरत में सेपरेट कर दिया, जो कि बड़ा हेल्पफुल हो जाता है आपको चीज़ें याद रखने के लिए। अब एज़ फार एज़ दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी कंसर्न्ड, ये लेक्चर आपका एक पब्लिक लेक्चर होगा, जो कि सारे लोग इसको व्यू कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को प्राइवेटली पेड सब्सक्रिप्शन के थ्रू परचेज़ किया हुआ है, दे विल गेट अनदर लेक्चर ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस। और मैं क्वेश्चंस भी उसमें लिख के दूंगा और उनमें आंसर्स भी लिख के दूंगा। इस लेक्चर के अंदर आर्टिकल के ऊपर कंप्लीट फोकस है। ज़ाहिर है दिस इज़ द मेन लेक्चर, बट अलॉन्ग विद दैट इज़ गना बी अ पर्टिकुलर लेक्चर जिसके ऊपर क्वेश्चंस और आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इसके अंदर मैंने आंसर्स डिस्कस नहीं किए हुए, मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने वीएलई से पिक किए हैं, बिकॉज़ ये अंडर डिस्कशन जो उनकी ब्लॉग डिस्कशन थी उसके ऊपर ये क्वेश्चंस आ रहे थे। तो एग्जामिनर ने इन क्वेश्चंस को खुद साइट किया है कि इस तरह से क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट के सेम क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ये मुख्तलिफ लोगों ने अपने कमेंट्स किए हैं जिसके अंदर से उन्होंने ये क्वेश्चंस पिक किए हैं। सो आपने एंड ऑफ द लेक्चर के अंदर जब आप ये पूरा लेक्चर सुन लोगे तो उसके बाद आप इस स्लाइड के ऊपर वापस आ सकते हो एंड यू ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, और आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है कि नहीं बनी। इसी तरह ये क्वेश्चंस तो मैंने वीएलई से पिक किए हैं और एंड के ऊपर मैंने 5-6 क्वेश्चंस कुछ और भी लगाए हुए हैं, तो आप उनको भी जब कर लोगे तो एटलीस्ट आपके 10 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट वुड बी अ गुड स्टार्ट to start the preparation. Now, moving on, let's look at the nature of the questions. The first question is, following the decision in Fern, would the glare from sun deflected off the defendant's glass roof into the claimant's window constitute a nuisance? Now, this is very interesting because जो फर्न वर्सेस स्टेट गैलरी ने किया है essentially वो ये किया है कि जो लैंड ओनर्स हैं जिनका इंटरेस्ट इन लैंड होता है उसके ऊपर विजुअल इंट्रूजन जो है दैट अमाउंट्स टू न्यूसेंस। जाहिर सी बात है कि अगर सूरज का चमकना, अगर एक बिल्डिंग के ऊपर शीशा लगा हुआ है और उस शीशे से सूरज चमक के वापस आपकी बिल्डिंग की तरफ कंटिन्यूसली आ रहा है, इधर इन अदर वर्ड्स हीट कॉज कर रहा है, तो मेरे नज़दीक डेफिनेटली इट कैन अमाउंट टू न्यूसेंस। बिकॉज अगर वो हीट भी कॉज कर रहा है, एक्स्ट्रा हीट कॉज कर रहा है, और लेकिन वो विजुअल इंट्रूजन नहीं होगा, बिकॉज उसमें सिर्फ हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या आया जो लैंड की इम्यूनिटी है, यानी लैंड का जो यूज़ है, रीजनेबल यूज़ जिसको हम कहते हैं, क्या वो अंडरमाइन हुआ है। यानी सूरज का आना क्या कोर्ट के लिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू का नीचे गिरने के मुतरादिफ था। बिकॉज इन फर्न वर्सेस स्टेट, continuous observation from the general public definitely amounted to reduction of the value of the land, right? उसके land के usage कम होने की वजह से कोर्ट ने उसमें होल्ड किया कि दैट अमाउंट्स टू न्यूसेंस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसके ऊपर दोनों साइड्स के ओपिनियन हो सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप अपने ओपिनियन को लॉजिक और जो रीजनिंग के साथ सपोर्ट करें। इन द एप्लीकेशन ऑफ रेशियो इन फर्न,
could technology companies themselves risk liability due to surveillance enabled by their device? अच्छा, अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप आगे जाके देखोगे कि ऑथर ने अपने क्वेश्चन अपने एक पूरे सेक्शन के अंदर वो गूगल से रिलेटेड विडहॉल वर्सेस गूगल वाला केस भी साइट किया है, जहाँ पर उसने ये इसकी एक रिजर्वेशन शो की है कि ऐन मुमकिन है कि कल को फ्यूचर के अंदर जो ऐसी डिवाइसेस हैं जो होम के अंदर इंस्टॉल हुई होती हैं, जैसे एलेक्सा है, जो कि आपके हर वक्त आवाज़ को सुन रही होती है, जिस तरह एप्पल के डिवाइसेस हैं उसमें सिरी का एक फ़ीचर है, या जो आपकी स्मार्ट बेल्स हैं या स्मार्ट कैमरास जो हैं, जो ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, वो क्या विजुअल इंट्रूजन तो कर रहे होते हैं, तो उन क्या आप उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ भी क्लेम कर सकते हो कि अगर किसी ने सिक्योरिटी कैमरा अपने घर के बाहर लगाया हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ भी आप एक न्यूसेंस की कंप्लेन कर सकते हो। सिमिलरली, what would be the disadvantage of extending the tort of battery into include sensory as well as physical intrusion? अब ये पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये भी एग्जामिनर ने अपने एंड के ऊपर बैटरी के साथ इसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया हुआ है, और उसने बेसिकली ये बोला हुआ है कि कॉलिन वर्सेस विलकॉक्स के मुताबिक हमेशा बैटरी फिजिकल टच के साथ रही है, लेकिन इस तरह से जिस तरफ हमारी डायरेक्शन जा रही है लॉ ऑफ टॉर्ट की, उससे तो लग रहा ऐसा है कि कल को जो है बैटरी के अंदर भी आप जो है वो सेंसरी इंट्रूजन, यानी आप देखने की बेसिस के ऊपर भी बैटरी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो आमतौर पर हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है बट फिजिकल इंट्रूजन में नहीं आता। Similarly, a core question is, do you think Supreme Court made the correct decision in Fern? How would you have decided? So it's a very interesting and broad-ended question, जिसमें आप फर्न की फेवर में भी बात कर सकते हो और इसके अगेंस्ट भी बात कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो इसमें मैं जो हैरी हारन का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसी को अडॉप्ट करूँगा, और मैं कहूँगा कि देखें, विजुअल इंट्रूजन को न्यूसेंस में कॉन्स्टिट्यूट करना, क्योंकि वो इम्यूनिटी ऑफ लैंड को कम करती है, वो डेफिनेटली इट वाज अ गुड डिसीजन। यानी कि कल को फ्यूचर के अंदर अगर कोई ड्रोन कैमरा से सर्वेलेंस कर लेता है किसी के घर की, तो डेफिनेटली दैट वुड अमाउंट टू न्यूसेंस, राइट? पापा राजीज टाइप जो इश्यूज आते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ के घर हैं उनके ऊपर आप मतलब सर्वेलेंस या स्पाई कैमराज या लॉन्ग रेंज लेंजेज को यूज़ करके आप उसकी पिक्चर्स लेते रहें, तो आई थिंक दैट डेफिनेटली अमाउंट्स टू न्यूसेंस, और अदालत को उसके ऊपर इंजंक्शन देनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो ऑथर ने आर्ग्यू किया है रीजनेबल यूज़र वाला, उसमें जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का उसने ज़िक्र किया है, तो वो मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ कि अगर ऐसी इंट्रूजन थी जिसको आप रोक नहीं सकते, मिसाल के तौर पर आप ड्रोन कैमरा को रोकना डेफिनेटली एक प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग रेंज लेंस को रोकना, कि आप अपने गार्डन में जाके अपना गार्डन का या पूल को एंजॉय कर रहे हो, उसको रोकना डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट डेफिनेटली ग्लास विंडोज़ को कवर करना इस हद तक कि एटलीस्ट जो लोगों का व्यू नज़र आ रहा था उस साइड पे, वो ना जो है वो आई थिंक एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में आ सकता था, जिस पे लाइबिलिटी का डेफिनेटली थ्रेशोल्ड डिफरेंट होगा, राइट? सो ये एक इंटरेस्टिंग टेक है। आगे जाके आपको अभी जिस तरह मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे जो वीएलई के ऊपर पोज हुए थे, ये क्वेश्चन आप सिर्फ तभी अंडरस्टैंड कर सकते हो वंस यू अंडरस्टैंड बेसिकली द केस इटसेल्फ, द आर्टिकल एंड द केस, दोनों पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, सो व्हाट दिस आर्टिकल फोकसेस ऑन, ये भी मैं बता दूं, दिस आर्टिकल फोकसेस ऑन प्राइमरीली ऑन प्राइवेट न्यूसेंस, तो इसीलिए मैंने अपने लेक्चर का स्टार्ट यहाँ से किया है। देखो, मेरे जो पेड सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए उसमें मैंने न्यूसेंस का फुल स्केल लेक्चर डाला हुआ है, वो आपको लाजमी प्रिपेयर करना होता है। उसकी रीज़न क्या है कि जब तक आपको न्यूसेंस एज अ टॉट की समझ नहीं आती कि न्यूसेंस वाई, लाइक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस एंड रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, जब तक आपको वो समझ नहीं आती तब तक आपको ये आर्टिकल भी डिफिकल्ट होगा ग्रास्प करना। बहरहाल, दिस आर्टिकल प्राइमरली फोकसेस ऑन प्राइवेट न्यूसेंस, देन इट फोकसेस ऑन विजुअल इंट्रूजन एज वेल, प्राइवेसी एंड प्रॉपर्टी राइट्स। सो ये सारे एरियाज हैं जो आर्टिकल जिसके ऊपर बातचीत कर रहा है। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द आर्टिकल, मेरा जो पहला पार्ट होगा लेक्चर का, उसमें मैंने थोड़ा सा आपके साथ न्यूसेंस की कुछ बातचीत करनी है, बिकॉज जब तक मैं प्राइवेट न्यूसेंस को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं इस आर्टिकल के क्रक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। बहुत से केस लॉ हैं जो आगे ऑथर ने भी रिफ़र किए हैं, हैरी हारन ने भी रिफ़र किए हैं, उनको समझने के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बेसिकली प्राइवेट न्यूसेंस को पहले समझें। तो ज़रा डेफिनेशन देखते हैं विनफील्ड एंड जॉलफेक्स की। डेफिनेशन क्या है न्यूसेंस? हाउ डज academics and legal commentarians defined
न्यूसेंस। तो प्राइवेट न्यूसेंस को जॉलिफिक्स डिफाइन करता है अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद द पर्सन यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। न्यूसेंस जो है दैट इज समथिंग एसोसिएटेड विद यू enjoying the very piece of land that you have interest in or some right over it or in connection with it. Scott LJ in Reed versus Lyons. Now, the most important significant part of this definition is that this is a right attached to the land, not to the person. So, person definitely उससे मुतासर हो रहा है, but आपकी ज़मीन उससे मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप मुतासर हो रहे हो. सो द क्वालिफिकेशन फॉर न्यूसेंस क्लेम इज दैट you have some sort of interest in land. It protects the an occupier right to enjoy and use his land free from unreasonable interferences. So जब आप अपनी एक ज़मीन खरीदते हो तो आपको ये right entitled है कि आप अपनी ज़मीन को enjoy कर सकते हो without any interferences. Most activities which give rise to claims in nuisance are in themselves lawful. Now आम तौर पर जो न्यूसेंस के क्लेम्स होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं जो कि वैसे एक्टिविटीज़ लॉफुल होती हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में म्यूज़िक प्ले कर रहे हो, क्लियरली दैट इज़ समथिंग लॉफुल। बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जब आप म्यूज़िक एक परसिस्टेंट टाइम पर एक लाउड वॉइस में इस लेवल तक प्ले करते हो कि आपके साथ वालों की नींद डिस्टर्ब हो रही है और ऑड टाइम्स पे आप प्ले कर रहे हो, तो वही एक्टिविटी एक न्यूसेंस बन सकती है। It is only when the activity interferes with another's enjoyment of land to the extent that it is unreasonable interference. Now, important word as students, unreasonable. Now, this word unreasonable, why is it important? Because in this article, the author does talk about in detail of what could have been a reasonable use of the land. Then it becomes unlawful, right? So there is a lot of threshold on the idea of an unreasonable interference. Now, so unreasonable in this context could be based on objective standard. The law on private nuisance represents an attempt to preserve a balance between two competing interests or two conflicting interests. अब वो क्या है? Number one, the interest of an occupier in using his land as he thinks fit. So पहला हमने इस चीज़ को बराबर करना है, इस चीज़ को बैलेंस आउट करना है कि एक शख्स जो है वो अपनी लैंड को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा था, क्या उसका जो राइट जो उसका इस्तेमाल था क्या वो रीजनेबल इस्तेमाल था, क्या वो ओवर सेंसिटिव तो नहीं है, ये भी डेफिनेटली एक फैक्टर देखा जाता है। फिर इसी तरह इंटरेस्ट ऑफ हिज नेबर्स इन क्वाइट एंजॉयमेंट ऑफ हिज लैंड, जो अब आपने दूसरे बंदे को भी देखना है कि यार उसका भी घर है, साथ वाले का भी आपका घर है जिससे आप जिस पे एलेज कर रहे हो कि ही इज कॉजिंग यू न्यूसेंस। द लॉ इज बेसिकली हैज़ टू इंश्योर कि उसने दोनों के राइट्स को बैलेंस आउट करके लेके चलना है। यानी सिर्फ आप अकेले नहीं रह रहे इस दुनिया में, आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनकी भी तो लैंड है, उनका भी तो राइट था उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का द वे दैट यू वांट टू एंजॉय, राइट? सो द कोर्ट हैज़ टू बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे द competing interest of the parties. Now, the landmark case that defines the idea of type of private nuisance is Hunter versus Canary Wharf. Now, this is a very important case where Lord Lloyd basically established the different types of nuisance. First of all, there is physical damage to land, for example, by flooding or noxious fumes, dump litter on the neighbor's property, or breaking the window. So there's physical damage. उसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको कोई फिजिकली नुकसान हो रहा है। दूसरा क्या है? सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस विद द बेनिफिशियल यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ऐसी हो सकती है कि ऐसी न्यूसेंस हो सकती है जहाँ पर आपका जो ऐसी इंटरफेरेंस है जो कि आपका यूज़ ऑफ लैंड को अंडरमाइन कर रही है। फॉर एग्जांपल, ऐसी स्मेल आ रही है, ऐसी ओडर आ रही है, या डस्ट है, या नॉइज़ है, आपके पास एक ऐसी फैक्ट्री खुल गई है जिसमें हर वक्त ब्रेकेज की आवाज़ आती रहती है, कुछ चीज़ें टूटने की आवाज़ आती है, या मशीन रन करने की आवाज़ आती है, इसको हम इम्यूनिटी डैमेज भी कहते हैं। नो, आई वांट यू टू रिमेंबर दिस वर्ड स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारा केस जो है ना फर्न वर्सेस स्टेट गैलरी वाला, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस इन रिगार्ड्स टू इम्यूनिटी डैमेजेस। यानी जब आपके उस पीस ऑफ लैंड को जब सब्सटेंशियली इंटरफेयर किया जाता है जिससे आपकी इंजॉयमेंट ख़त्म होती है। नाउ इन दिस रिगार्ड दे डोंट कॉज एनी फिजिकल डैमेज टू प्रॉपर्टी बट अफेक्ट्स योर एबिलिटी टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड substantial interference with the beneficial use of property. Now, the third one is encroachment on the neighbor's land.
Now, encroachment, for example, by spreading the roots or overhanging branches, which is of the minor significance. तो ये वो एक ऐसा tort है जिसको relatively easily court जो है वो settle करा सकती है, क्योंकि इसमें आपकी branches वगैरह आ गई, दरख्त झुक गया, या आपकी सीपेज थी, तो उसके ऊपर एक बातचीत हो सकती है. बट एक बात आपने याद रखनी है कि देर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ लाइक अ सेपरेट न्यूसेंस जिसको हम रायलैंड वर्सेस फ्लेचर कहते हैं. खैर वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा. बट फॉर द मेन topic of nuisance, that is one of the main considerations that students must identify between a private nuisance and the rule versus Ryland and Fletcher. Now, what amounts to a private nuisance? Now, this is another important question. What is this unlawful interference that we've been talking about? So, the landmark case and the judgment out of that is from Lord Wright. This is called O'Callaghan. The O'Callaghan case basically talks about what amounts to a private nuisance. So, this is such an important long quote that I have jotted it down completely. So, I would like to read it out. It says the balance has to be maintained between the rights of the occupier to do what he likes on his own and the right of his neighbor not to be interfered with. It is impossible to give any precise or universal formula, but it may broadly be said that useful test is perhaps what a reasonable, according to the ordinary uses of mankind living in society, or more correctly in a particular society, the forms which the nuisance may take portion. Certain clarifications are possible, but many reported cases are no more than illustrations of particular matters of the fact which have been held to be nuisances. Now, there are a couple of things out of this definition and the important statement. The first one is the test of a reasonable user. Now, I want you to focus on this word, the reasonable user. And that has to be balanced with the balancing interest of the defendant to use their enjoyment of their land legally permitted against the conflicting interest of the claimants to have the quiet enjoyment of the land. The second part, apart from this whole idea of a reasonable user which the court is addressing to, the second part is that there could be number of illustrations and they are not limited in any case laws. So that means there could be new situations which may amount to private nuisance. So there's no fixed categorization that the law has done particularly. Now, when it comes to unreasonable user, that is basically where there is interference, unlawful interference, and if the if the actions of the parties are reasonable, then it would be lawful interference. So the whole test of the usage of the land is based on an objective standard. It is impossible to establish legal rules as to what is reasonable use of one's land. It is a question of fact, and therefore the reasonableness of the interference is determined by the court weighing several factors and taking account of all the circumstances of the case. यानी अदालत कह रही है कि रीजनेबलनेस को जज करना इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है कि हम कोई एक फिक्स्ड इसकी डेफिनेशन रख सकें. ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको तमाम सर्कमस्टांसेस की बेसिस के ऊपर इंफर किया जाता है, सेवरल फैक्टर्स को देख के और सर्कमस्टांसेस टू ईच केस को देख के हमने उसका देखना होता है कि क्या यूजेज जो है वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल है. अगर तो उसका यूजेज जो है जो न्यूसेंस कॉज कर रहा है उसका जो यूजेज है वो अनरीजनेबल है, then in that case it would amount to private nuisance. Now, the case law on reasonable use, ये हमारे पास मैंने कुछ केसेस लिखे हैं जिसमें बार वर्सेस बिफा का जो केस है ख़ास तौर पे वो तो ये जो हमारा जो केस है फर्न वर्सेस स्टेट गैलरी वाला, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है. सो इन केसेस को ज़रा क्विकली देखते हैं. सो पहला केस है वाटर वर्सेस सेल्फ 1851. ये ज़रा पुराना केस है. इंटरफेरेंस विल नॉट बी अनरीजनेबल अनलेस इट इज़ सब्सटेंशियल, नॉट मेरली अकॉर्डिंग टू एन एलिगेंट और डेंटी मोड्स and habits of living, but according to plain and sober and simple notions among the English people, as per Knight
ब्रूस वीसी इन वॉल्टर वर्सेस सेल्फ। सो वेरी इंटरेस्टिंग, वो कह रहे हैं कि जो हमारा रीजनेबल यूज़ होगा वो हम उस एक कॉमन इंग्लिश मैन जो एक रीजनेबल अच्छा आदमी है उसके यूजेज को देखते हुए हमने ये देखना है कि क्या एक प्लेन और सिंपल नोशंस के अंदर इंग्लिश सोसाइटी में ये बिहेवियर नॉर्मल था या नहीं था। इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है, रीजनेबल मैन स्टैंडर्ड है। सिमिलरली हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट केस आता है, इट्स कॉल्ड साउथ वार्क LBC वर्सेस मिल्स एंड बैक्स्टर वर्सेस कैम्डन LBC। दोनों केसेस हैं। The ordinary use of your home will not amount to nuisance even if it discomforts your neighbors due to poor soundproofing or insulation. So अगर आप अपने घर का नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके घर में ज़ाहिर है सुबह नाश्ता भी बनता है, दोपहर को खाना भी बनता है, लोग गपशप भी लगाते हैं, रात को टीवी भी देखा जाता है। अब ये एक ऐसा यूजेज है जो बिल्कुल एक नॉर्मल स्टैंडर्ड का यूजेज है। हाँ, अब ये नॉर्मल नहीं होगा कि रात को 3 बजे जो है कोई ब्लास्टिंग म्यूज़िक जो है वो प्ले करना स्टार्ट करते, तो वो किसी भी एक रीजनेबल मुनासिब शख्स के लिए नामुनासिब सी बात होगी, क्योंकि लोगों ने सुबह काम पर जाना होता है, लोगों ने सुबह जल्दी उठना होता है, राइट। सिमिलरली बार वर्सेस बिफा वेस्ट सर्विस 2012 इंपॉर्टेंट केस है जी, मैंने पहले बताया आपको, इट कंसर्न न्यूसेंस बाय स्मेल। Now, Carnworth LJ judgment on this point was that the common law of reasonable use is at most different way of describing old principle, not an excuse of reinventing them. The question is neither what is reasonable in the eyes of defendant or even the claimant, for one cannot be being unduly sensitive, constrain one's neighbor's freedom, but what objectively a normal person would find it unreasonable and have to put up with. Now, ना तो हमने इसमें क्लेमेंट के यानी मुद्दई के ना तो पॉइंट से देखना है और ना ही डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिकॉज डिफेंडेंट हमेशा ये कह रहा होगा जी मेरा तो नॉर्मल यूज़ है, मेरा रीजनेबल है, और क्लेमेंट कह रहा होगा नहीं जी मैं तो इस एक्ट से बड़ा ही तंग हूँ, मतलब इसने क्योंकि अपने घर के अंदर कुछ एनिमल्स रखे हुए हैं या कोई पेट्स रखे हुए हैं मैं उससे तंग हूँ, या ये मोटर सुबह चला देता है तो मैं उससे तंग हूँ क्योंकि मैंने तो 11 बजे तक सोना होता है और मैं तो पूरी रात काम करता हूँ। तो वो रीजनेबल यूज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जो ओवर सेंसिटिव क्लेमेंट्स हैं उनको लॉ फिर नहीं अकोमोडेट करता, बिकॉज हमने दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को बैलेंस आउट करना है। रैपियो वर्सेस लंडन ट्रामवेज इंपॉर्टेंट केस है जी, इट इज़ नो डिफेंस टू प्रूव द डिफेंडेंट हैड टेकन ऑल रीजनेबल केयर टू प्रिवेंट द न्यूसेंस अकरिंग। सो ये कोई डिफेंस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जी हमने अपनी तरफ से उसकी वार्निंग्स भी लगा दी थी, हमने साउंड प्रूफिंग भी अच्छी करवा दी है, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम आवाज़ जाए, लेकिन आवाज़ फिर भी जा रही है, स्मेल फिर भी जा रही है। The court will look at the result of the defendant's conduct, so it's more of a result sort of a tort, आउटकम बेस्ड टॉर्ट है। प्रिवेंटिव मैयर इसमें आपने रीजनेबल अगर इस्तेमाल किए भी हैं वो एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ज़रूर बन सकते हैं, पर इट्स नॉट कैन एग्जॉनरेट योर लाइबिलिटी सिंपली बिकॉज कि आप कह रहे हो ओ मेरे वजह से तो कुछ होना नहीं था, बिकॉज मैंने बड़े अच्छे इक़दाम किए थे, इक़दाम करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की थी, बट बहरहाल ये है तो है नहीं, इट वोंट वर्क लाइक दैट। अच्छा, नाउ फैक्टर्स डिटर्मिनिंग रीजनेबल यूज़, इसमें हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, कैम्ब्रिज वाटर को वर्सेस ईस्टर काउंटीज लेदर। Important case है जिसमें House of Lord held that the liability has usually been regarded as strict, at least in the cases of defendant who has been responsible for creation of nuisance, even so that the liability has been kept under control by principle of reasonable user. The effect is that if the user is reasonable, the defendant will not be liable for consequent harm to his neighbor's enjoyment of land. But if the user is not reasonable, the defendant will be liable, even though he may have exercised reasonable care and skill to avoid it. So it doesn't matter कि उसने कितनी कोशिश की थी, what matter is कि उसका जो इम्पैक्ट आ रहा था वो रीजनेबल था या नहीं था. So the factors determining reasonable use include damage to property or personal discomfort, the nature of locality, duration and frequency of the nuisance that is occurring, utility of the defendant's conduct, एंड एबनॉर्मल सेंसिटिविटी एंड ऑल्सो मैलिस कि क्या जानबूझ के तो नहीं वो कर रहा. फॉर एग्जांपल एक बंदा साथ वाले की इस चीज़ से तंग होता था कि जी वो सुबह सुबह मोटर ऑन कर देता है, राइट. और अब जब उसने उसको कंप्लेन किया कि यार आप शाम के टाइम अपनी मोटर ऑन कर लिया करें या थोड़ा सा लेट ऑन कर लिया करें, वो जानबूझ के और अर्ली स्टार्ट कर गया. तो दिस इज़ वेयर मैलिस कम्स इन, आपने डिलिबरेटली कोई काम किया है, राइट.
Now we're gonna move on to the article. अब हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है लॉ ऑफ टॉर्ट की. अब मैंने इसमें वो डिटेल्स नहीं कवर की कि हु कैन सू एंड हु कैन गेट सूड. वो बड़ी एक डिटेल डिस्कशन है जो न्यूसेंस के टॉपिक के अंदर है. सो अगर तो आपने मेरा वो लेक्चर सुन लिया हुआ है, दैट्स ग्रेट. नहीं सुना हुआ तो एटलीस्ट आप मॉड्यूल गाइड को न्यूसेंस के लिए एक दफ़ा पढ़ लें बिफोर यू मूव ऑन विद द आर्टिकल. Now, the article highlights the landmark case of Fern versus Board of Trustees for Tate Gallery, Fern, in which UK Supreme Court has held that the visual intrusions are in principle actionable under tort of private nuisance. So यहाँ पर बेसिकली फैक्ट्स भी आपके सामने रखूंगा, बट प्राइमरीली ऑन द फेस ऑफ इट जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि एक बिल्डिंग है, एक सॉर्ट ऑफ म्यूज़ियम गैलरी टाइप बिल्डिंग है जिसका नाम टेट गैलरी है और मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड. तो उसका एक ऑब्जर्वेशन डेक था जिससे जो क्लेमेंट की बिल्डिंग्स थी, उनके जो फ्लैट्स थे, लग्जरी फ्लैट्स थे, उनकी जो ग्लास पूरा सामने डिस्प्लेड था, वो आगे जाके मैं आपको तस्वीर में भी दिखाता हूँ, उसकी ऑब्जर्वेशन हो सकती थी. अब ये जो ऑब्जर्वेशन डेक टेट गैलरी ने बनाया हुआ था, ये तो बेसिकली बनाया हुआ था कि लंदन के जो हाई राइज व्यूज़ हैं उनको एंजॉय किया जा सके, राइट. लेकिन जो उसकी स्काई लाइन है, लेकिन अल्टीमेटली इसका एक इम्पैक्ट ये भी आ रहा था कि जो पब्लिक एट लार्ज जो आ रही थी वहाँ पर उस डेक में, वो अक्सर दे वुड पीक इनटू the claimants properties, and they would take pictures and all that. So the claimants were really disturbed and they were saying कि हमारी privacy जो है वो undermine हो रही है. Now the UK Supreme Court came up with a 3-2 judgment holding that Tate Gallery, Modern Gallery, being liable for not preventing public from viewing into the claimant's property. Now, this is a very important point because it's not a unanimous decision, so it's a 3-2 decision. But एक बात आपको यहाँ पे बतानी ज़रूरी है कि as far as visual intrusion to be considered as a nuisance, उसके ऊपर कोर्ट का यूनानिमस व्यू है और पांचों के पांचों सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि yes, visual intrusion can amount to प्राइवेट न्यूसेंस. तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है. हाँ, जो दो माइनॉरिटी जजेस हैं उन्होंने एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट किया और वो कोर्ट ऑफ अपील और ट्रायल कोर्ट की अप्रोच को ज़्यादा सेकंड कर रहे हैं एज कंपेयर टू agreeing with the majority of the judgment. Now, Harry Haran welcomes this approach, that is the development of nuisance beyond the physical interference of land. However, the author has reservations as how the court has defined the concept of common and ordinary reasonable use, जो हमारा main crux है tort का, tort of nuisance का. कॉमन एंड ऑर्डिनरी रीजनेबल यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है, क्या उसके ऊपर ऑथर ये कहता है, हैरी हारन का ये मानना है कि उस पे अदालत ने एक एक्सटेंशन कर दी है जो कि मुनासिब नहीं है. और उसका जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था, प्राइमरीली अगर मैं उसको एक फ़िक्रे में कहूँ, जो कि कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन चलो अगर एक फ़िक्रे में कह देता हूँ, तो वो ये है कि वो बेसिकली उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो लोग थे, दे कुड हैव अडॉप्टेड, जो क्लेमेंट्स थे, दे कुड हैव अडॉप्टेड प्रिवेंटिव मेजर्स and use curtains and privacy glasses and tints in order to diminish the intrusion by the public at large. So उसने कहा कि कोर्ट ने बैलेंस आउट नहीं किया सही तरह, और बल्कि ये एक्यूजिशंस भी आ गई, हालांकि ऑथर ने रिजेक्ट किया इन एक्यूजिशंस को कि ये कोर्ट ने वेल्थी लोगों की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्टीमेटली ये फैसला किया. ये मीडिया के अंदर मल्टीपल आर्टिकल्स इस पॉइंट के ऊपर लिखे गए हैं और उन आर्टिकल्स का भी मैं जिक्र करूँगा आगे जाके. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट कि जो हैरी हारन का मेन कंटेंशन है वो कॉमन एंड ऑर्डिनरी यूज़ पे है. उसको इस बात से मसला नहीं है कि विजुअल इंट्रूजन एक न्यूसेंस होनी नहीं चाहिए. Furthermore, the article considered the wider impact of the decision, specifically in the area of privacy protection, particularly with the use of modern gadgets. And there is a very interesting incremental डिस्कशन जो कि उसने एंड पे जाके की है विद रिगार्ड्स टू द टॉट ऑफ बैटरी, और उसके साथ इसको किस तरह से एक्सटेंड किया जा सकता है. सो दैट इज समथिंग दैट द ओवरऑल this article is talking about. All right, so now let's move on to the introduction, the overall, the first part of the article. सो आर्टिकल के स्टार्ट में ना ऑथर जो है वो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करता है कि न्यूसेंस होती क्या है, और फिर उसने कुछ केस लॉस का जिक्र किया है. In law of tort of private nuisance, the law generally protects the person's use and enjoyment of land from substantial interference originating from the neighboring property.
Most nuisance cases involve something emanating from the defendant's land, such as physical or sensory intrusion. For example, in William versus Network Railway Infrastructure, the spread of Japanese knotweed roots from the defendant's land was considered as capable of constituting nuisance. तो जैसे हमें पता है कि न्यूसेंस जो है फिजिकल इंटरफेरेंस ऑफ द लैंड हो सकती है, वो सेंसरी भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है. सिमिलरली न्यूसेंस में अराइज फ्रॉम एक्सेसिव नॉइज एज रिकग्नाइज इन द केस ऑफ लॉरेंस वर्सेस फेन टाइगर्स और फ्रॉम अनप्लेजेंट ओडर्स एज वाज इन द केस ऑफ बार वर्सेस बिफा वेस्ट सर्विसेज. However, nuisance is not strictly limited to physical emanations. In Thompson's Schwab versus Skotsky, the Court of Appeal held that the visible activity of sex workers and their clients entering and leaving the neighboring premises could amount to nuisance because of the impact on the character of the neighborhood. तो ज़ाहिर है neighborhood की वैल्यू डिमिनिश हो जाएगी अगर ऐसा कोई इलिसिट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस नेबरहुड में, तो आपकी जो लैंड की इंजॉयमेंट है उसमें अगर आपकी फैमिली रह रही है, आपके बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व, तो यू डोंट वांट टू बी एट दैट प्लेस जहाँ पर आप ऐसी साइट को कंटिन्यूसली व्यू कर रहे हो. अ सिमिलर अप्रोच अपीयर्ड इन द केस ऑफ लॉज वर्सेस फ्लोरेन Place Limited, where it was held that the operation of sex shop in the residential area could potentially constitute nuisance. Despite these exceptions, it has traditionally been assumed that certain interference, particularly mere overlooking from the neighboring property, would not ordinarily amount to nuisance. सो ऑल्दो कि हमने देखा है कि जो आपके घर के सामने की कोई साइट है या आपकी प्रॉपर्टी के सामने अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो डूबियस एक्टिविटी है या शेडी एक्टिविटी है जो कि आपके लैंड की इंजॉयमेंट के अंदर इंटरफियर कर सकती है, वो तो डेफिनेटली न्यूसेंस है. ऐसी ऐसी चीज़ को तो रिकग्नाइज नहीं किया जहाँ पर प्राइवेट न्यूसेंस मेयर ओवरलुकिंग के साथ हमें नज़र आ रही हो. नाउ इसी तरह द केस इटसेल्फ, अब हम आते हैं कि ऑथर ने पहले एक इंट्रोडक्शन बता दिया कि जी किस किस एरिया में हमें न्यूसेंस नज़र आती है और किस एरिया में नज़र नहीं आती. फिर ऑथर जो है वो हमें इस केस की तरफ लेके जाता है. केस का नाम फर्न वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज फॉर टेट गैलरी 2023 यूके सुप्रीम कोर्ट WLR 339 marked a significant development in the law of private nuisance. This case, which took over 5 years to progress through different courts, challenged the long standing assumption that mere visual intrusion or overlooking could never amount to nuisance. तो इस केस में जो चैलेंज किया गया था पॉइंट, उस में उसने लॉ बनाया है इस केस ने कि जहाँ पर मेयर ओवरलुकिंग को हिस्टोरिकली कभी भी विजुअल इंट्रूजन को न्यूसेंस नहीं समझा गया, लेकिन इस कोर्ट में ने 2023 में विजुअल इंट्रूजन को भी न्यूसेंस का स्टेटस दिया है. द यूके सुप्रीम कोर्ट यूनानिमसली रिजेक्टेड द कोर्ट ऑफ अपील्स position, held that the visual intrusion can in principle constitute an actionable nuisance where it substantially interferes with the claimant's use and enjoyment of the land. So कोर्ट ने अल्टीमेटली एक यूनानिमस फैसला इस हद तक दिया है, यूनानिमस इस हद तक यानी पांचों के पांचों जज उस पॉइंट पे मुत्तफिक हैं कि जी विजुअल इंट्रूजन कैन इन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट एक्शनेबल न्यूसेंस. लेकिन एज फार एज ऑन द फैक्ट्स, the court is divided between 3:2, where the court held that the Tate Modern is liable because of museum's viewing platform allowed a large number of visitors to look directly into the claimant's glassed walled luxury flats and apartments. So जो कोर्ट है इस चीज़ पे डिवाइडेड है. 3 जजेस कह रहे हैं कि डिफेंडेंट जो है उसने न्यूसेंस कॉज की है, दे शुड बी हेल्ड लाइबल, whereas the 2 judges disagree with that approach. The court considered that the constant observation by the members of public amounted to an unreasonable interference with the claimant's enjoyment of their property. The decision also attracted significant media and public attention, with major outlets such as BBC, The Guardian, and the Financial Times widely reported the case and debating its implication for urban living, privacy, and public spaces. Commentators questioned whether the residents of highly transparent buildings should reasonably expect privacy. अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपने एक शीशे का घर ले लिया, आपके घर की चारों दीवारों में जो है वो शीशा लगा हुआ है, तो आप ये एक्सपेक्ट करें एक अर्बन लिविंग के अंदर कि अब फिर उस शीशे में कोई देखे भी ना.
तो ये तो मुनासिब बात नहीं है ना। या तो आप खुद कोई ऐसा अपने अपनी प्राइवेसी के लिए कोई ऐसी फ़िल्म लगा लें या ऐसे कर्टन्स यूज़ कर लें। बेशक आप शीशे का घर रखें, हम इस चीज़ के ऊपर ख़िलाफ़ नहीं है कि लोगों का शीशे का घर नहीं होना चाहिए। आप रख लें शीशे का घर, बट द पॉइंट इज़ कि आपके ऊपर भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स ने और जो बाकी मीडिया जर्नलिस्ट ने ये रेज़ किया है दैट अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा and whether the ruling might have broad implications for city development and public viewing spaces. तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट बात थी इसके केस की। नाउ बियॉन्ड न्यूसेंस, अब इस स्लाइड के अंदर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो एक आर्ग्यूमेंट था कि न्यूसेंस से हट के इस क्लेम को भी देखा जा सकता है और वो प्राइवेसी का क्लेम था। द डिसीजन इन फर्न raises number of broader legal questions extended beyond the traditional scope of private nuisance। तो हम देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ प्राइवेट न्यूसेंस का इशू नहीं है एट डिस्कशन, इसमें और भी चीज़ें डिस्कस हो सकती थी। Scholars have highlighted that the case engages important debates about protection of personal privacy, which commentators such as Adinan Economiou and Donald Nolan and Leo Bunziar analyzing whether nuisance law can effectively safeguard physical privacy from visual intrusion। So ये तीनों हैं, डोनल है, लियो है, और इन तीनों को उसने साइट किया है ऑथर ने और कहा है कि क्या आया जो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल प्राइवेसी है उसके ऊपर जो डिबेट हमें करनी चाहिए थी, क्या वो फिजिकल प्राइवेसी इंट्रूजन के साथ सेफगार्ड की जा सकती है। इट ऑल्सो रेजेस क्वेश्चंस कंसर्निंग द नेचर एंड लिमिट्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स विद राइटर्स सच एज विक्टोरिया बॉल एंड एमा examining how the decision reshapes the relationship between property ownership and neighboring land use. Furthermore, the case has implications for interactions between nuisance and planning systems। यहाँ बड़ा important है कि न्यूसेंस और प्लानिंग सिस्टम्स, जिसने ये परमिशन दी थी कि टेट गैलरी बन सके, जिसने ये परमिशन दी थी कि वहाँ पर ग्लास्ड जो अपार्टमेंट बन सकें सारी, जो कि व्यू हो सकते हैं, एज डिस्कस्ड बाय डेविड होवर्थ and Emma Lees, particular regarding whether planning permissions should shield defendants from nuisance liability. So planning permission का ही एक role होना चाहिए to shield the liability. Finally, the case has prompted discussion about the relationship between human rights and private law, especially the horizontal influence of rights such as privacy within the common law doctrines। तो ये भी एक important factor है कि जो ECHR की प्रोविजन है उसका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट कैसे हो सकता है अंडर द इश्यूज ऑफ प्राइवेसी, पर्टिकुलरली जहाँ पर दो पार्टीज़ के दरमियान क्लेम है और पब्लिक क्लेम नहीं है। Commentators including Harry Haran and Jonathan Morgan have explored how the decision reflects the evolving role of human rights principles in shaping the development of private nuisance। So इस बात का भी ध्यान में रखा जाए कि जो ECHR की प्रोविज़न है, आर्टिकल 8 है, राइट ऑफ प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ, इसका कैसे हॉरिजॉन्टल इम्पैक्ट भी यूज़ हो सकता है या नज़र आता है हमें इन द डेवलपमेंट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। क्योंकि ज़ाहिर है 1998 के बाद से जब HRA आया हुआ है तो उसके बाद से जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन है उसके ऊपर ख़ास ख्याल रखा जाता है। सो अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल्स का जिक्र किया है, आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। और ये कहाँ से मैंने पिकअप किए हैं, ये मैंने उसके फुट नोट से पिकअप किए हैं। जो तीनों ऑथर्स यहाँ पर डेविड हॉवर्थ, एमा लीज और फिर इसी तरह विक्टोरिया बॉल और फिर लियो और डोनाल्ड नोलन, ये जितने ऑथर्स मैंने यहाँ पे साइट किए हैं दे आर ऑल लिस्टेड इन दी फुट नोट्स, और आप इनको फर्दर एक्सप्लोर भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू लुक इनटू और पीक इनटू देयर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यूज़। नाउ द फैक्ट्स ऑफ फर्न वर्सेस स्टेट, थोड़ा सा इसको चले जाते हैं। फैक्ट्स तो बड़े सिंपल हैं। इन फर्न वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ स्टेट गैलरी, द क्लेमेंट्स वर लॉन्ग लीज होल्डर्स ऑफ लग्जरी फ्लैट्स इन न्यू बैंक साइड डेवलपमेंट इन सेंट्रल लंडन। देयर अपार्टमेंट कंटेन्स ग्लास वॉल्ड विंटर गार्डन्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ लिविंग स्पेस। तो उनका एक विंटर गार्डन था जिसके ऊपर सारा ग्लास लगा हुआ था और वो हर अपार्टमेंट के साथ शेयर्ड था। ऑपोजिट टू द फ्लैट्स, द टेट मॉडर्न कंस्ट्रक्टेड अ बेलवेटनिक बिल्डिंग व्हिच इंक्लूडेड पब्लिक व्यूइंग गैलरी। तो उसके बिल्कुल सामने जो था वो बेसिकली एक ये जो टेट वाली मॉडर्न बिल्डिंग थी, टेट मॉडर्न बिल्डिंग,
इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन डेक था। फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म द विजिटर्स कुड डायरेक्टली लुक इनटू द क्लेमेंट्स फ्लैट्स अबाउट 34 मीटर्स अवे, तो वो बड़े अप्रॉक्सीमेट थे। एंड मैनी वर ऑब्जर्व्ड वाचिंग एंड फोटोग्राफिंग द रेजिडेंट्स, तो ये बड़ा कॉमन था कि वो ना सिर्फ वहाँ पे खड़े होकर देखते थे, बल्कि मोस्ट पीपल दे वुड engage in taking pictures. The claimants argued that this constant overlooking interfered with their use and enjoyment of their homes and therefore amounted to private nuisance. तो उनका ये बेसिकली दावा था। अब पहले जो जाता है कोर्ट, जिस कोर्ट में ये केस जाता है वहाँ पे हाई कोर्ट के पास जाता है ये केस। द क्लेमेंट फाइल्ड फॉर इंजंक्शंस, दे प्लीडेड द केस ऑन 2 grounds। तो उन्होंने एक स्टे लेने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जी टेट को चाहिए कि वो अपने लोगों को रोके, जो पब्लिक आ रही है उसको रोके और वो ऊपर ना जाने दे ताकि वो हमारी प्राइवेसी इन्फ्रिंज ना करें। उन्होंने 2 क्लेम्स किए और उन्होंने 2 ग्राउंड्स बेसिकली इन्वोक किए। पहला ग्राउंड ये था that there was a direct claim under Article Section 6, of the HRA, arguing that Tate being a public authority to act compatibly with Article 8 of the ECHR। तो उन्होंने सेक्शन 6 के तहत ये क्लेम किया कि जी टेट मॉडर्न जो है ये एक सॉर्ट ऑफ म्यूज़ियम ही है, मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम है, ये एक पब्लिक अथॉरिटी है और इसको चाहिए कि ये जो आर्टिकल 8 है ये बाउंड है उस आर्टिकल 8 को इंडोर्स करने के लिए अपने एक्शंस में, तो इसलिए इसको रोका जाए कि ये हमारी प्राइवेसी इन्फ्रिंज ना करे। दिस ग्राउंड वाज रिजेक्टेड बाय मैन जे on the basis that the state did not exercise public function, the point was not further contended। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये कंटेंट भी नहीं हुआ था, बल्कि इसके फुट नोट पे यहाँ पे मैंने, सॉरी ये मैं पॉइंट नहीं डाला, लेकिन ये जहन में रखिएगा आप, मैं क्योंकि यहाँ पे बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने जब रीड किया था आर्टिकल तो मैंने इसको 2-3 दफ़ा जब पढ़ा है तो मुझे तो अब काफ़ी हद तक ज़ुबानी याद हो चुका है ये आर्टिकल। अब इसमें जो पॉइंट उसमें लिखा हुआ है ना कि इसमें हाई कोर्ट ने इस पॉइंट पे फर्दर लीव फॉर अपील ग्रांट नहीं की थी, ये भी एक पॉइंट है इसमें इम्पॉर्टेंट। ये एक तो मैन जे ने क्लियरली कह दिया कि ना तो वो पब्लिक अथॉरिटी है और ना ही वो पब्लिक फंक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसकी वजह से आर्टिकल 6, सॉरी सेक्शन 6 और आर्टिकल 8 उनके ऊपर डायरेक्टली एज अ मैटर ऑफ चार्टर या एज अ मैटर ऑफ ECHR प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। नाउ vertically speaking, horizontally yes हो सकता है। Now second is that the Tate use of viewing gallery is unreasonable interference with the enjoyment of their flats such as amounted to private nuisance। तो दूसरा जो ग्राउंड था वो ये था कि जो टेट गैलरी के जो यूज़र्स हैं या जो उनका यूज़ है, उनकी जो व्यूइंग गैलरी का यूज़ है, वो एक अनरीजनेबल इंटरफेरेंस कॉज कर रहा है विद द क्लेमेंट्स राइट टू एंजॉय इट्स ओन प्रॉपर्टी। Now the court accepted this proposition, ट्रायल कोर्ट ने भी इस proposition को accept किया, and as there was no previous conclusive authority over this point, so कोर्ट ने, मैन जे ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उन्होंने कहा कि जी विजुअल इंट्रूजन के ऊपर हमारे पास पहले कोई ऐसी अथॉरिटी नज़र नहीं आती, इसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि जनाब ये एक कंक्लूसिव अथॉरिटी नहीं है इस क्योंकि पॉइंट के ऊपर, तो इसमें बन सकती है। एक्सेप्शन वाज फाउंड इन अ केस ऑफ ऑस्ट्रेलियन जुरिस्डिक्शन विच इज़ नोन एज विक्टोरिया पार्क रेसिंग एंड रिक्रिएशन ग्राउंड्स को लिमिटेड वर्सेस टेलर, विच वाज नॉट बाइंडिंग अपॉन दिस कोर्ट ऑफ कोर्स। तो उसने एक रेफरेंस जरूर लिया था विजुअल इंट्रूजन के लिए, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन केस था। नाउ मैन जे pointed that the law could be developed as per HRA, particularly Article 8। J. Morgan points that although the language is not clear, so ये एक आर्टिकल का रेफरेंस दिया हुआ है ऑथर ने इमीडिएटली कि जे मॉर्गन ने ये आर्ग्यू किया है कि मैन जे की जो लैंग्वेज थी वो इस पॉइंट पे इतनी क्लियर नहीं थी। हाउएवर इट सीम्स टू इंडिकेट टूवर्ड्स द इनडायरेक्ट हॉरिजॉन्टल इफेक्ट इन प्राइवेट लॉ क्लेम्स। ये आर्ग्यूमेंट है और ये हैरी हारन का भी आर्ग्यूमेंट है। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि दिस अप्रोच जो हिज लॉर्डशिप मैनजे ने अडॉप्ट की है वो रिफ्लेक्ट करती है कि आर्टिकल 8 प्राइवेट पार्टीज के क्लेम में कैसे इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है, इनडायरेक्ट हॉरिजॉन्टल इफेक्ट जो है उस वो क्रिएट कर रहा है। यानी कोर्ट जब इस लॉ को इंटरप्रेट कर रही है तो उसने आर्टिकल 8 को ड्यू इफेक्ट दे रही है, इन अदर वर्ड्स। नाउ nevertheless man J did not find the liability on part of the defendants। तो पहला बात तो ये है कि ट्रायल जज ने ये तो ज़रूर कहा है कि विजुअल इंट्रूजन जो है वो एक न्यूसेंस तो हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने इस केस के अंदर
लाइबिलिटी फाइंड नहीं की। और क्यों नहीं की? ऑल्दो द जज फिजिकली विजिट द प्रेमिसेस एंड डिड फाइंड द ऑब्जर्वेशन टू बी अ मटीरियल इंट्रूजन, जज साहब जो हैं वो खुद उस बिल्डिंग के पार्ट के ऊपर गए हैं और उन्होंने उन फ्लैट्स का भी मुआयना किया है, और वहाँ जाके अल्टीमेटली उन्होंने कहा है कि हाँ, जिस तरह से ये लोग इस फ्लैट्स को देखते हैं या जिस तरह से बिल्डिंग को देखा जाता है, ये डेफिनेटली एक विजुअल इंट्रूजन तो है, मटेरियल इंट्रूजन तो है, बट इन हिज व्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेट्स ऑपरेशन ऑफ द गैलरी वाज नॉट एन अनरीजनेबल यूज़। यानी उसने जो टेट मॉडर्न गैलरी जिस तरह से अपने ऑब्जर्वेशन डेक को यूज़ कर रही है, वो एक अनरीजनेबल यूज़ नहीं है। आपको पता है इस पूरे टॉर्ट का जो इन्हिसार है, इसकी जो डिपेंडेंस है, वो रीजनेबल यूज़ के ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि ये अनरीजनेबल नहीं था, इसलिए ये न्यूसेंस नहीं हो सकती। लैंड एज रिक्वायर्ड फॉर द टॉर्ट फॉर द रीज़न ऑफ लोकेलिटी एंड रेमिडियल मेजर्स। तो दो बातें अदालत ने की। उन्होंने कहा कि जो क्लेमेंट्स के पास रेमिडियल मेजर्स हैं, यानी इंस्टॉलिंग कर्टन्स हैं, इंस्टॉलिंग प्राइवेसी टेंट ग्लासेस हैं, वो क्लेमेंट्स के पास मौजूद हैं, और जो बिहेवियर या जो एक्शंस टेट गैलरी के लोग ले रहे हैं या टेट गैलरी के अंदर आने वाले जो पब्लिक है वो ले रही है, वो इतना ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि वो हम अनरीजनेबल कह दें, बिकॉज वो एक पब्लिक स्पेस है, और पब्लिक स्पेस में लोग आते ही शहर का व्यू एंजॉय करने के लिए हैं। अब उसमें अगर आपकी बिल्डिंग एक प्रॉक्सिमिटी या क्लोजनेस में आ रही है, तो इसमें ऑब्जर्वर्स का तो कोई फॉल्ट नहीं है। सो ट्रायल जो कोर्ट ने अल्टीमेटली लाइबिलिटी नहीं फाइंड की। अब ये मैटर क्लेमेंट्स जो हैं ये अपील में लेके जाते हैं, एंड द अपील वाज डन बिफोर द कोर्ट ऑफ अपील। जो कोर्ट की साइटेशन है इस केस की, दैट इज़ फर्न वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द टेट गैलरी 2020 EWCA CIV 104। सो कोर्ट ऑफ अपील सिविल डिवीजन 104 के अंदर इसकी अपील लगती है। ऑन द अपील इन फर्न, the Court of Appeal upheld the Manchay's decision but for different reasons. So ट्रायल कोर्ट के फैसले को उन्होंने अपहोल्ड किया, और उन्होंने कहा कि विजुअल इंट्रूजन जो है उसने कोई न्यूसेंस नहीं कॉज की। द कोर्ट हेल्ड दैट मेयर ओवरलुकिंग कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट प्राइवेट न्यूसेंस। अब ये जो अप्रोच है कोर्ट ऑफ अपील की, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम मैनजेस। मैनजे ने कहा था कि विजुअल इंट्रूजन कैन अमाउंट टू न्यूसेंस। ये कोर्ट कह रही है कि मेयर ओवरलुकिंग कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट प्राइवेट न्यूसेंस। यानी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी लॉ की, यहाँ पर कोर्ट ने वही अडॉप्ट किया, रिलाइंग ऑन व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज ओवरवेलमिंग वेट ऑफ जुडिशल अथॉरिटी। कोर्ट कह रही है कि ये जुडिशल अथॉरिटी की ओवर रीच है कि अगर हम कहेंगे कि जी विजुअल इंट्रूजन जो है वो एक न्यूसेंस अमाउंट कर सकती है। इट रीजनड दैट अनलाइक ट्रेडिशनल न्यूसेंसेस सच एज नॉइज, डर्ट, फ्यूम्स और विजुअल इंट्रूजन लैक अ क्लियर ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड फॉर डिटर्मिनिंग लाइबिलिटी। द कह रही है कि जिस तरह से ये जो बाकी टाइप ऑफ न्यूसेंसेज हैं, नॉइज़ की है, डर्ट की है, फ्यूम्स की है, इसमें एक क्लियर ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा होता है, एक स्टैंडर्ड नज़र आ रहा होता है लाइबिलिटी को डिटर्मिन करने का, कि यार इस चीज़ को रोकना है। लाइक मेयर लुकिंग, इसको रोकना, इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, क्वांटिफाई करना बड़ा प्रॉब्लमैटिक है इवन। सो the Court of Appeal also suggested that the planning laws rather than nuisance law is the appropriate mechanism for addressing the overlapping disputes। तो आप प्लानिंग वालों को सू करें जिन्होंने उसकी प्लानिंग परमिशन दी है कि जी उन्होंने क्यों इस तरह की बिल्डिंग वहाँ पर बनने दी है, बजाय इसके कि आप न्यूसेंस के लॉ को इतना एक्सटेंड कर दें। Furthermore, the court considered that the claim mainly concerned privacy rather than property rights, in issue better dealt with the parliament। So उन्होंने कहा कि जो प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं ये उसके अंदर केस फॉल करता है, ये न्यूसेंस का केस नहीं बनता। और प्राइवेसी का क्लेम जो है वो अगर उसको इस तरह की मेयर लुकिंग ओवर ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपने उसको कोई चीज़ उस पर रोकना है, इंजंक्शंस ग्रांट करनी है, तो बजाय इसके कि हम न्यूसेंस को एक्सटेंड करें, पार्लियामेंट को चाहिए कि वो प्राइवेसी राइट्स के ऊपर नए कानून साजी करे। यानी जुडिशल रिलक्टेंस हमें नज़र आ रही है कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से। कोर्ट ऑफ अपील विलिंग नहीं है कि वो इस डिबेट में जाए और इस चीज़ को एक्सटेंड करे। इसी तरह फर्दर ऑन we can see that finally it was held that Article 8 of the ECHR did not require common law of nuisance to expand, so doing so under the Human Rights Act would distort the established principle of law of tort। तो कोर्ट ने वो जो इंडिकेशन जो मैन जे ने दी थी, इंडिकेशन थी जो कि हमने मॉर्गन के उस आर्टिकल में भी देखी, कि जो इंडिकेशन थी कि जी आर्टिकल 8 का हमें हॉरिजॉन्टल इफेक्ट नज़र आ रहा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट नज़र आ रहा है, जहाँ पर हमने टॉर्ट के एरिया को एक्सपेंड कर दिया प्राइवेसी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो
कोर्ट ऑफ अपील जो है वो इस चीज़ को भी कंप्लीटली कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर रही है. नाउ देन कम्स अप द यूके सुप्रीम कोर्ट डिसीजन. जाहिर सी बात है यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है और यही एक्चुअल डिसीजन है जिसके अंदर अल्टीमेटली लॉ मेकिंग हुई है. इसमें मेजॉरिटी जजेस कौन हैं? लॉर्ड लेगेट हैं, जिनके साथ लॉर्ड रीड और लॉर्ड लॉयड जोन्स जो हैं उन्होंने अग्री किया, और लॉर्ड लेगेट ने मेन जजमेंट ऑथर की है. और इट्स 3:2 जजमेंट. 2 जजेस ने डाइसेंटिंग नोट लिखा है. तो मैं पहले पार्ट के अंदर जो है मैं उसकी मेजॉरिटी जजमेंट को डिस्कस करूंगा और फिर मैं उसकी माइनॉरिटी जजमेंट को डिस्कस करूंगा. ऑथर ने बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस किया है. नाउ लॉर्ड लेगेट began by restating the fundamental principles of private nuisance, emphasizing that the nuisance is tort to land and that protects the amenity and utility of land rather than personal discomfort of the occupier. The central inquiry is whether the defendant use of land has caused a substantial interference with the ordinary use of claimant's land. Now ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर 9 और 47 नज़र आ रहा है, ये आपको आगे भी बहुत ज़्यादा नज़र आएगा. ये उसकी फुट नोट है, यानी पैरा नंबर 9 के अंदर और पैरा नंबर 47 ऑफ द जजमेंट के अंदर लॉर्ड लेगेट ने ये बात की है. अब ये ऑथर ने इस तरह साइट किया हुआ है तो मैंने उसको इस तरह इंडोर्स कर लिया. फुट नोट्स की जगह मैंने उसको साथ साथ लिख दिया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने में आसानी हो. Concepts of substantial requires an objective threshold of seriousness while the ordinary use involves two ideas. अब यहाँ पर अदालत ने ordinary use के लॉ को भी एक्सप्लेन किया. कोर्ट कहती है कि ऑर्डिनरी यूज़ के दो हिस्से हैं. पहला, द क्लेमेंट कैन नॉट कंप्लेन इफ द इंटरफेरेंस अराइजेज बिकॉज दे आर यूजिंग द लैंड इन एन अनयूजली सेंसिटिव मैटर. तो अगर खुद क्लेमेंट जो है वो इतना सेंसिटिव हो के अपने लैंड को यूज़ कर रहा है तो वो रीजनेबल ऑर्डिनरी यूज़ में नहीं आता. सेकंड ये है that there is no liability where the defendant activity constitute common and ordinary use of land in the locality provided it is conveniently done, reflecting the classic principle articulated in the Bamford versus Turnley case. Now this is a very important case जो सुप्रीम कोर्ट ने साइट किया. ऑथर ने उसको रिफ़र किया है कि बैमफोर्ड के अंदर जो ऑर्डिनरी और कॉमन यूज़ इन लोकेलिटी था, अगर वो भी फुलफिल हो रहा है तो then it would not amount to nuisance. Now नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वॉट. अच्छा, अब फर्दर कोर्ट ऑफ यूके सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट को रिएटरेट करती है कि ये लॉ तो हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन जो न्यूसेंस का एरिया है उसके ऊपर कोई आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन हमें नज़र नहीं आती. सो लॉर्ड लेगेट फर्दर क्लैरिफाइड दैट न्यूसेंस इज़ नॉट लिमिटेड टू फिजिकल एमिनेशंस इवन दो मैनी केसेस इन्वॉल्व सच इंटरफेरेंसेस. तो उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है कि सिर्फ न्यूसेंस जो है फिजिकल एमिनेशंस या फिजिकल इंटरफेरेंस के साथ लिंक नहीं है. इसके अंदर आम तौर पर तो हमें नज़र आता है कि मोस्ट ऑफ द न्यूसेंसेस कंसर्न फिजिकल interferences, but it can go beyond that. Nuisance may arise by any means, and historically recognized examples include obstruction of access in Guppy's case versus Brookling, obstruction of right to light in Jolly versus Kine, and glare caused by reflected sunlight in Bank of New Zealand versus Greenwood. अब एक सवाल था कि क्या आया ग्लेयर ऑफ सनलाइट कैन अमाउंट टू न्यूसेंस. तो कोर्ट ने ऑलरेडी बैंक ऑफ न्यूजीलैंड वर्सेस ग्रीनवुड के केस को साइट करके इस पॉइंट को एड्रेस किया हुआ है कि यस, इन अ प्रीवियस केस देयर वाज a nuisance considered. In other words, basically the court is saying that there is no fixed category of nuisance which have been taken place. New and modern areas of nuisances can be developed. Similarly, Lord Leggett also referred to earlier cases involving morally offensive use of land, including Thomas Schwab. ये मैंने आपके साथ पहले भी केस डिस्कस किया था जो सेक्स वर्कर्स से रिलेटेड था. लॉज वर्सेस फ्लोरिन प्लेस लिमिटेड, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट न्यूसेंस इज नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल इन्वेजन ओनली. इसके अंदर आपका जो आपका व्यू है दैट कुड इट सेल्फ बी, या जो आप विटनेस कर रहे हो चीज़ वो भी इट सेल्फ कैन अमाउंट टू न्यूसेंस. यहाँ पर भी अदालत ने एक रेफरेंस दिया है इंक्रीमेंटल अप्रोच का कि देखें हमारे पास पहले भी बहुत से सिचुएशंस थी जहाँ पर न्यूसेंस को एक्सटेंड किया गया था, तो यहाँ पर भी विजुअल इंट्रूजन को भी हम एक्सटेंड करेंगे. Other important consideration which the court did highlight was to establish the principle of reasonable user, or the idea that give and take between neighbors is therefore merely a shorthand for determining whether the defendant use is common and ordinary. Similarly, the traditional rule that the landowner may build whatever they wish on their land
recognized in Hunter versus Canary Wharf, reflects the basic freedom to occupy and develop property, although Lord Leggett acknowledged that in extreme circumstances the design or construction of the building might still constitute nuisance. तो ये भी डेफिनेटली उन्होंने कहा कि वैसे तो हम फ्रीडम एक अलाउ करते हैं कि एक बंदा अपनी लैंड को जिस तरह मर्जी यूज़ करना चाहता है कर सकता है, लेकिन ऐसी भी हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग itself may constitute nuisance. So Lord Leggett also reaffirmed several established doctrinal principles, including first, coming to the nuisance is not a defense, meaning that the claimant is not barred simply because the defendant activity existed before they acquired the land. Second, public interest is not a defense liability in nuisance. तो पब्लिक इंटरेस्ट यानी अवाम का कितना फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, तो इस चीज़ को अलाउ किया जाए. मिसाल के तौर पर अगर घर के साथ आपके एयरपोर्ट बन जाए और उससे बहुत ज़्यादा आपके घर को नॉइज़ आ रही है तो वो न्यूसेंस अमाउंट कर सकती है, बिकॉज आप ये नहीं आर्ग्यू कर सकते कि जी वो तो अवाम का कितना फ़ायदा है, देखें कितने हज़ार फ़्लाइटें यहाँ से गुजरती हैं. ऑल्दो इट मे बिकम रेलिवेंट व्हेन डिटर्मिनिंग रेमेडीज़, तो रेमेडीज़ को डिटर्मिन किया जा सकता है. मिसाल के तौर पर टाइमिंग्स को देखा जा सकता है, उन चीज़ों को देखा जा सकता है, बट जनरली स्पीकिंग पब्लिक पॉलिसी इज़ नॉट अ ग्राउंड जो कि एक डिफेंस के तौर पर, या पब्लिक इंटरेस्ट इज़ नॉट अ ग्राउंड जो कि एक डिफेंस के तौर पर यूज़ हो सकता है. राइट नाउ एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स ऑन द फैक्ट, तो कोर्ट ने बाद में फिर के सारे कानून को सामने रख के अब इसको अपने ऊपर अप्लाई किया. उन्होंने कहा जी अब फर्न के केस में इसको अप्लाई करके देखते हैं. Applying these principles to the facts, Lord Leggett concluded that the Tate's liability was entirely straightforward. यानी अदालत कह रही है और majority of the judges कह रहे हैं कि जी इसमें तो कोई मसला है ही नहीं. The viewing gallery enabled large number of visitors to observe the claimant's flat continuously. An intrusion linked to being on a display at a zoo. ये बड़े strong words कोर्ट ने यूज़ किए हैं पैरा नंबर 48 के अंदर कि ये ऐसे ही मुतरादिफ है जैसे कि आपको एक चिड़ियाघर के अंदर बंद कर दिया जाए, एक जू के अंदर बंद कर दिया जाए और आपको सारे लोग आके देखते जाए, विच क्लियरली अमाउंटेड टू सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस विद द यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. Furthermore, by inviting members of the public to congregate and look directly into the neighboring homes, the Tate was not engaging in common and ordinary use of the land. पैरा 50 के अंदर कोर्ट ने 48 में और 50 में दो इंपॉर्टेंट बातें की हैं. एक तो पहली बात ये की है कि विजुअल इंट्रूजन कैन अमाउंट टू न्यूसेंस एज इफ यू आर ऑन अ डिस्प्ले, तो क्लेमेंट का जो क्लेम है वो बिल्कुल जायज़ है. और दूसरा कोर्ट ने ये कहा है कि टेट ने इतने लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को अपनी व्यूइंग गैलरी में बुला के उनको ये ओपन एंडेड ऑप्शन दे दिया है कि जनाब वो ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, पिक्चर्स भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ पे मटेरियल फैक्ट सामने रखना चाहूँगा कि टेट को ये बावर कराया गया था, बार बार बताया गया था कि यहाँ से ये मसला आ रहा है. तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जगह जगह डिस्प्ले पोस्टर्स लगा दिए थे कि पीपल शुड नॉट बी व्यूइंग द क्लेमेंट्स प्रॉपर्टी नॉर शुड बी टेकिंग एनी पिक्चर्स. तो उन्होंने वार्निंग साइन ज़रूर लगा दिए थे कि रिस्पेक्ट द प्राइवेसी, लेकिन उसके बावजूद भी, उन वार्निंग साइंस के बावजूद भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था. अच्छा, इसके बाद कोर्ट ने जब अपनी रूलिंग बताने के बाद कोर्ट ने जो एरर्स थे प्रीवियस कोर्ट्स के उनको डिस्कस किया. तो लॉर्ड लेगेट ने he then identifies the errors in the reasoning of the lower court. Man J had wrongly conducted a broad assessment of what a reasonable in is an undefined sense, instead focusing on whether the Tate's use of land was common and ordinary. तो कोर्ट कह रही है कि जो मैन जे ने जो रीजनिंग फाइंड की है, ब्रॉडर असेसमेंट ऑफ रीजनेबल यूजेज की जो फाइंडिंग की है, वो कॉमन एंड ऑर्डिनरी यूजेज के टेस्ट से डिफरेंट है. ही ऑल्सो इनकरेक्टली ट्रीटेड द ग्लास वॉल्ड नेचर ऑफ द क्लेमेंट्स फ्लैट एज एबनॉर्मल सेंसिटिविटी. कोर्ट ने ये भी होल्ड किया है कि अदालत का ये कहना, ट्रायल जज का ये कहना कि जो शीशों वाले घर हैं या जिन घरों के बाहर शीशा लगा है, ये एबनॉर्मल सेंसिटिविटी को खुद दावत देने वाली बात है, इवन दो सेंसिटिविटी इज़ इररेलेवेंट वेयर द डिफेंडेंट्स एक्टिविटी इटसेल्फ इज़ एबनॉर्मल. तो उन्होंने कहा कि जो एबनॉर्मल सेंसिटिविटी है उसमें हमने इस चीज़ को देखना होता है कि पहले आया डिफेंडेंट का जो एक्ट है वो एबनॉर्मल तो नहीं है, क्या वो ज़्यादा अनरीजनेबल तो नहीं है. Man J further erred by considering the steps the claimant could have taken to mitigate the problem, such as installing blinds, which improperly shifted responsibility onto the victims. तो Man J के इस पॉइंट को भी कोर्ट क्रिटिसाइज कर रही है कि जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का जिक्र किया था या मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो कि वो टेक
टेक इनटू अकाउंट कर सकते थे, मिसाल के तौर पर कर्टन्स लगा ले लेते या ब्लाइंड्स लगा लेने। ये ट्रायल कोर्ट ने भी गलत फैसला किया है, बिकॉज इस तरह तो विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। विक्टिम को कह रहे हो कि आप अपना खर्चा कर लो, डिफेंडेंट्स ने नहीं रुकना देखने से, राइट। सो इसी तरह कोर्ट ने फिर जाके कोर्ट ऑफ अपील की रीजनिंग के अंदर जो डिफेक्ट्स थे उनको हाईलाइट किया। कोर्ट कहती है, लॉर्ड लेगेट कहते हैं दैट द कोर्ट ऑफ अपील्स principal mistake according to Lord Leggett was to frame the case as merely about overlooking। यानी ये ऐसे था कि जैसे कुछ नज़र आ रहा है, सिर्फ नज़र नहीं आ रहा था। दिस वॉज अ कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन डेक। In ordinary circumstances, the fact that one building overlooks another or a person can see what occurs in the neighboring land would not be actionable। तो कोर्ट ने साथ ही रिस्ट्रिक्शन बता दी है कि सिंपली अगर आपकी विंडो से, अगर आपका घर ऊंचा है और आपकी विंडो से साथ वाला घर नज़र आता है, तो ये सिर्फ नज़र आना इज़ नॉट द प्रॉब्लम। नज़र आना कोई न्यूसेंस नहीं हो सकती, लेकिन इन्वाइटिंग पब्लिक टू इन एन ऑब्जर्वेशन डेक इन अ व्यूइंग गैलरी, ताकि वो लोग आपका पर्पसिवली आके आपकी को देख सकें, आपकी पिक्चर्स बना सकें, वो नामुनासिब है। तो कोर्ट ने कहा, हाउएवर द क्लेमेंट्स कंप्लेंट वाज फंडामेंटली डिफरेंट। इट कंसर्न टेट्स डिलिबरेट इनवाइटिंग लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स onto a viewing platform to look out in all directions, including directly into claimant's home. Treating the situation as ordinary and overlooking was therefore misleading। राइट। तो अदालत कह रही है कि जो कोर्ट ऑफ अपील ने जो व्यू रखा था कि ये ओवरलुकिंग है, नज़र आ रहा है, बस दूर से आपको नज़र आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जानबूझ के हम देखते हैं कि कोर्ट जानबूझ के टेट मॉडर्न गैलरी ने एक लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स को एक्सेस दी हुई थी कि वो आएँ और वो हर डायरेक्शन में देखें, इंक्लूडिंग द डायरेक्शन जिसमें क्लेमेंट की प्रॉपर्टी थी। लॉर्ड लेगेट illustrated the flaw by an analogy, arguing that this conduct is not nuisance because overlooking is normally tolerated, would be similar to saying that noxious odors cannot amount to nuisance because the neighbors must tolerate the smell of ordinary cooking। तो ये तो वही वाली बात होगी कि जी स्मेल की अगर न्यूसेंस को, क्या आप कहें कि जी ऑर्डिनरी कुकिंग है तो इसको टॉलरेट किया जाए बाकी सारों लोगों के साथ, ये उसी तरह से मुआवजना हो गया कि ये तो ओवरलुकिंग हो गई। नहीं जी, नज़र आ रहा है, कोई बिल्कुल भी ओवरलुकिंग नहीं है, ये डिलिबरेट है। नज़र आ रहा है कि वो जानबूझ के एक लार्ज क्राउड को वहाँ पे लेके आ रहे हैं, जो कि ये पर्टिकुलरली इंट्रूजन ऑफ विजुअल इंट्रूजन ऑफ देयर प्राइवेसी कर रहा है। Policy consideration, Lord Leggett ने भी address की, and he talked about the broader policy consideration. Both Man J and the Court of Appeal had been influenced by public interest in maintaining public viewing gallery, but public interest, according to Lord Leggett, is not relevant in determining liability of nuisance. Similarly, the planning system does not override private laws. Rights. Planning permission regulates land development in public interest but does not extinguish private nuisance claims, a principle supported by earlier authority of Lawrence versus Fen Tigers Limited and Barr versus Biffa Waste। तो वो कह रहे हैं कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि प्लानिंग परमिशन का लॉ जो है वो इस चीज़ को रेगुलेट कर ले, वो पब्लिक इंटरेस्ट को बिल्कुल देखता है, बट वो प्राइवेट न्यूसेंस के क्लेम को डिमिनिश नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता प्लानिंग परमिशन का लॉ, बिकॉज प्राइवेट न्यूसेंस है वो इन इट्स सेल्फ एक सेपरेट कैटेगरी है, जैसे कि हमें पहले दो केसेस में भी नज़र आया था। कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्लानिंग परमिशंस वर इंस्टेड रेलिवेंट ओनली एट द रेमेडियल स्टेज। यानी उसकी रेमेडी के तौर पर वो ज़रूर देखा जा सकता है कि पब्लिक इंटरेस्ट किस हद तक हमने सेफ गार्ड करनी है, कि क्या रेमेडी हम दे रहे हैं, राइट। पर्टिकुलरली व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू अवॉर्ड डैमेजेस इंस्टेड ऑफ इंजंक्शन, यहाँ हम डैमेजेस दे दें या हम इंजंक्शन दे दें, उसकी हद तक तो डेफिनेटली ये कंसिडर किया जा सकता है कि आया इसमें पब्लिक इंटरेस्ट कितना इन्वॉल्व है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं माइनॉरिटी के डिसीजन पे। माइनॉरिटी 2 जजेस का था और उसमें लॉर्ड सेल्स और लॉर्ड किचन ने अग्री किया लॉर्ड सेल्स के साथ। माइनॉरिटी जजमेंट को मेनली ऑथर किया है लॉर्ड सेल्स ने। तो लॉर्ड सेल्स कहते हैं, इन फर्न विद whom लॉर्ड किचन agreed delivered a detailed dissenting judgment, the minority agreed with majority that visual intrusion can in principle constitute private nuisance. However, they disagreed that majority application of law to the facts concluded that Tate was not liable। तो पहली इंटरेस्टिंग बात तो ये है और फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट बात तो ये है
कि सुप्रीम कोर्ट यूनानिमस है इस फैसले के ऊपर कि विजुअल इंट्रूजन कैन अमाउंट टू न्यूसेंस। अलबत्ता जो माइनॉरिटी है, लॉर्ड सेल्स ख़ास तौर पर, वो इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि जिस तरह से कोर्ट ने एप्लीकेशन की है फैक्ट्स के ऊपर, वो ठीक नहीं है। लॉर्ड सेल्स emphasized the traditional nuisance principle, that is reasonable reciprocity or give and take between neighbors, which requires balancing the competing interest of both the parties. Although he accepted that the Tate's viewing gallery was not common and ordinary use of land in locality, तो उन्होंने ये तो ज़रूर किया कि टेट का जो ऑब्जर्वेशन डेक है, या जिस तरह से टेट ने लोगों को इनवाइट किया हुआ है कि वो आके लोग वहाँ से व्यूइंग कर सकते हैं, वो एक ऑर्डिनरी और कॉमन यूज़ तो नहीं है। बट ही आर्ग्यूड सिग्निफिकेंट इंटरफेरेंस विद क्लेमेंट्स एंजॉयमेंट ऑफ लैंड इज नॉट ऑटोमेटिकली सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश लाइबिलिटी। इंस्टेड न्यूसेंस लॉ रिक्वायर्स अ ब्रॉडर evaluation of a reasonableness, including whether the claimants had made themselves particularly vulnerable। तो अदालत ने कहा कि हम इस पूरी चीज़ को रीजनेबलनेस के स्टैंडर्ड से देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि आया जो क्लेमेंट है उसने रीजनेबल स्टेप्स कोई लिए हैं, डिफेंडेंट ने कोई रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं कि नहीं लिए, पर्टिकुलरली वर्नेबल थ्रू द डिज़ाइन ऑफ देयर ग्लास फ्लैट, and whether ordinary self-help measures such as installing curtains or blinds could have mitigated the problem। तो अदालत ने बेसिकली मैन जे की उस अप्रोच को अडॉप्ट किया है जो लॉर्ड सेल्स ने अडॉप्ट किया है माइनॉरिटी के तौर पर, कि यार यहाँ पर रेमेडियल हमारे पास बहुत से एक्शंस थे जो कि सेल्फ हेल्प की बेसिस के ऊपर क्लेमेंट्स खुद भी ले सकते थे। दे शुडंट बी ओवर सेंसिटिव अबाउट थिंग्स, और रीजनेबलनेस के लिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फॉलोड द अप्रोच ऑफ ट्रायल कोर्ट। मैंने जैसे आपको बताया कि लॉर्ड सेल्स की जो अप्रोच है वो बड़ी सिमिलर है मैन जे के साथ। लॉर्ड सेल्स देयरफॉर एंडोर्स द रीजनिंग ऑफ ट्रायल जज as Manjay, who had examined the extensive evidence and personally inspected the site। ये भी लॉर्ड सेल्स ने कहा कि देखो सबसे बेहतर असेसमेंट मैनजे कर सकते थे, बिकॉज वो मौके पे जाके वहाँ पे उन्होंने सब कुछ विटनेस भी किया था। मैनजे देन कंक्लूडेड दैट द टेट्स व्यूइंग गैलरी वाज नॉट ऑब्जेक्शनेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने कहा कि ऐसा नेबरहुड है जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स है और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक और इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। That the claimant flat involved a atypical and unusually transparent design, and that practical measures were available to residents to protect their own privacy। तो मैन जे ने ये होल्ड किया था कि एक तो पहली बात यह है कि जो क्लेमेंट की प्रॉपर्टी है वो अनरीजनेबली ट्रांसपेरेंट है, अनयूजुअली ट्रांसपेरेंट है, उसकी चारों साइडों पे सिर्फ शीशे ही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि जी जो क्लेमेंट्स हैं उनके पास खुद ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को कुछ प्रोटेक्शन ऑफर कर सकते हैं। लॉर्ड सेल्स फर्दर स्ट्रेस दैट द एपेलेंट कोर्ट शुड बी रिलक्टेंट, सॉरी, यानी इससे लॉर्ड सेल्स कह रहे हैं कि एपेलेट कोर्ट ने, जब ट्रायल कोर्ट ने एक इतना डिटेल्ड फैसला दिया है और जाके फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द लैंड की है, तो एपेलेट फोरम को एक रिलक्टेंस शो करनी चाहिए विद द ट्रायल जज फैक्चुअल असेसमेंट, एंड ही कंसिडर्ड दैट द कोर्ट ऑफ अपील वाज रॉन्ग टू डिस्टर्ब मैनजेज एवेल्युएशन ऑफ द फैक्ट्स। तो उन्होंने ये भी क्रिटिसाइज़ किया कि कोर्ट ऑफ अपील ने जो मैन जे की फैक्चुअल एवेल्युएशन को चैलेंज किया है वो गलत है, और कोर्ट जो यूके सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है वो भी गलत है, इसीलिए उन्होंने अपना डिसेंटिंग नोट लिखा है। नाउ द आउटकम एंड द लेटर डेवलपमेंट। अब हुआ क्या, अब अल्टीमेटली तो कोर्ट ने कह दिया दैट द डिफेंडेंट इज causing nuisance, that is the Tate Modern Gallery is causing nuisance to the claimants of the flats। Following the decision in Fern, the Supreme Court allowed the claimant's appeal and held that the operation of viewing gallery could constitute nuisance। However, the court did not immediately determine remedy। कोर्ट ने ना तो इंजंक्शन ग्रांट की और ना ही कोई डैमेजेस दी, उन्होंने रिमिट कर दिया केस को, वापस भेज दिया टू हाई कोर्ट टू डिसाइड वेदर द इंजंक्शन और डैमेजेस शुड बी ग्रांटेड। एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज दो चीज़ों को वो सेपरेट देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली इसको न्यूसेंस के केस पे देखा है, रेमेडी के तौर पर नहीं देखा। Subsequently, the Tate Modern appears to have partially reopened the viewing gallery in the building, promoting the panoramic views of London। Reports indicate that while some areas of the platform remain open to the public, the southern side facing the claimant's flat has been completely blocked off, leaving only partial views to the north and east of the building। This development suggests that the parties may have reached a practical compromise, partially restricting the access of the viewing platform in order to comply with the Supreme Court's ruling, although some reports indicate that the permanent resolution between the parties may not has been yet been finalized। तो बेसिकली उनका क्या हुआ है कि अभी तक एक उनका मुआहदा हो चुका है
सीम्स लाइक इट प्राइमा फेसाई ऐसे नज़र आता है कि उन्होंने जो वो साइड थी जहाँ से बिल्डिंग नज़र आती थी, उन्होंने उस साइड को बंद कर दिया पब्लिक के लिए, पब्लिक वहाँ पे जाके वो व्यू नहीं कर सकती। सो इट सीम्स लाइक अ पार्शियल एग्रीमेंट बट इट डज नॉट स्टिल prove that the agreement has been finalized as yet, so it still needs to know कि अल्टीमेटली अगर वो रेमेडी स्टेज पे जाते हैं हाई कोर्ट में तो क्या रेमेडीज उनको अवार्ड होती हैं। All right, so now this part of the article now moves towards the arguments raised by Harry Haran himself. अब इसने क्या-क्या मतलब पहले सबसे पहले उसने तीनों कोर्ट्स के फैसले को सामने रख के उसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया। द नेक्स्ट सेक्शन नाउ बेसिकली टॉक्स अबाउट हिज कमेंट। तो सबसे पहले वो फर्स्ट इशू को एड्रेस करता है। वो कहता है कि ये जो यूनानिमस होल्डिंग था कोर्ट का कि इन विजुअल इंट्रूजन इज केपेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ न्यूसेंस, इसको पहले वो किस तरह से डील करता है। द मेजॉरिटी went further and suggested that there is no conceptual limit on what types of interference may be actionable under nuisance, since the tort protects the use and enjoyment of the land rather than particular form of interference as per para 12 of the judgment. Although many commentators, including the obligation discussion group, जिसका reference दिया हुआ है, उनका एक email group था, initially agreed with the Court of Appeals appeal view that visual intrusion could never ground nuisance claim, the Supreme Court reasoning demonstrate why that position is problematic. However, the author disagrees with this proposition and welcomes the change made by the UK Supreme Court. तो जो हैरी हारन का पर्टिकुलर व्यू है वो फेवर करता है कि विजुअल इंट्रूजन को टॉर्ट लॉ के अंदर एज अ as a nuisance consider होना चाहिए. Traditionally, it had been argued that nuisance requires physical interference with land and either through a physical emanation or crossing the boundary such as smoke, dust, or tree roots, or through an activity altering the physical condition of the claimant land. This distinction was highlighted in academic commentary, particularly Roderick Bagshaw in his analysis of the limits of the nuisance, and is also reflected in theoretical discussions of property rights by Simmons Douglas and by Ben McFlaren. So ये दोनों के आर्ग्यूमेंट के अंदर तीनों बल्कि तीन आथर्स के आर्ग्यूमेंट के अंदर ये पॉइंट्स जो हैं ये हैरी हारन ने आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ पर ये इस टाइप ऑफ न्यूसेंस को कंसिडर किया गया है कि जो फिज़िकल इंटरफेरेंस है और फिज़िकल एमिनेशन है. Underlying the justification of such a requirement is that the nuisance is taught to land, meaning that the land it must itself be interfered with. Moreover, the courts and commenters have often argued, like the Court of Appeal in Fern, that it is easier to draw objective lines in cases of physical interference such as noise, dust or fumes than in cases involving visual intrusion. So definitely court इस चीज़ को तो acknowledge कर रही है कि फिजिकल इंट्रूजन के केसेस के अंदर जो है वो इजी होता है एक लाइन को ड्रॉ करना एज कंपेयर टू जो आपको विजुअल इंट्रूजन में नज़र आती है. Now, the author he disagrees with the restrictive approach. He says that the Supreme Court rejected this restrictive approach. Lord Leggett explained that the nuisance is fundamentally concerned with the impact on amenity and utility of land and not the physical nature of interference itself. So clearly, जब आपकी उस लैंड की इम्यूनिटी या उसकी जो इन्जॉयमेंट है वो इंटरफेयर होती है तो डेफिनेटली दैट अमाउंट्स टू न्यूसेंस इवन इन केसेस इन्वॉल्विंग फिजिकल इन्वेजन sorry, physical invasion, the true basis of liability lies in the effect on the claimant's enjoyment of land and not the fact that the physical substance has crossed the boundary. So वो कहता है ऑथर कहता है कि इवन जो फिजिकल इंट्रूजन वाले केसेस भी थे उसके अंदर फिजिकल इन्वेजन वाले केसेस में भी इंजॉयमेंट ऑफ लैंड जो है वो प्रीकर्सर रखा गया है न्यूसेंस का रादर देन द फिजिकल सब्सटेंस उसको हम नहीं देखते. दिस रीजनिंग ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई द लॉ already recognizes many nuisance cases that do not neatly fit within the physical interference model. जैसे मैंने आपको वो सेक्स वर्कर्स वाला केस भी पहले रेफर करके बताया था तो ऑथर ने उन बेसिस के ऊपर ये होल्ड किया है कि यस दिस रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच वाज नॉट द राइट अप्रोच तो जो लॉ ने historically developed की हुई थी. Consequently, visual intrusion can in principle amount to nuisance since it may interfere with the enjoyment of property in the same way as noise, dust or odors. So, court जो है वो उसने ठीक फैसला किया इसको recognize करके. Now, the policy argument which was laid, the policy argument that the court
struggled, the courts would struggle to draw boundaries in visual intrusion cases was also rejected. Lord Leggett stated. Lord Leggett stated that the possibility of difficult or borderline cases is not valid reasons to deny liability where the threshold of nuisance is clearly satisfied. The dangers of excluding visual intrusion was illustrated in Fairhurst versus Woodard, where the defendant installed multiple surveillance devices, including smart doorbells and cameras, which captured images of the claimant's property. Because of the Court of Appeal has insisted that the mere overlooking could never constitute nuisance, the claim had to be dismissed under the nuisance law and instead pursued under the data protection and harassment legislation. So इसने वो जो कोर्ट ऑफ अपील वाली अप्रोच है उसको यहाँ पर हाईलाइट किया है. The case therefore illustrates how the categorical exclusion of visual intrusion could produce unjust outcomes even in serious cases of interference. तो author जो है he is not open to this idea कि visual intrusion को जो है वो लिमिट किया जाए या विजुअल इंट्रूजन को टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस में कंसिडर ना किया जाए बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम इट विल बी एन अनजस्ट आउटकम. Similarly, comparisons with other torts. तो comparison किया जाता है. More broadly, the Supreme Court reasoning exposes a deeper conceptual difficulty with the notion of physical interference must be a prerequisite to nuisance. In other torts, such as battery, physical interference generally refers to contact or touching. And activities such as emitting smoke, light, heat would necessarily qualify as battery. Would not qualify as battery, my apologies. तो जिस तरह अगर आप धुआं स्मोक कर रहे हो, वेप कर रहे हो, तो वो बैटरी नहीं होगा, लाइट बैटरी नहीं होगा, हीट बैटरी नहीं होगा, उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए. एज नोटेड बाय विलफील्ड एंड जॉलिफेक्स ऑन टॉर्ट ऑफ Loudcamp and Nolan, the infliction of heat, light, smoke may not amount to battery because it does not involve any direct contact. Yet nuisance law clearly recognizes intangible interference such as noise, smells, and lights as actionable. Attempting to describe these as physical because they alter the physical condition of land makes the concept artificial and incoherent. If sound waves, odors, glare can be treated as actionable interference, there is no principal reason why visual observation of human gaze should automatically fall outside the tort. तो यहाँ पर ऑथर ने क्या किया है कि कंपैरेटिव एनालिसिस किया है विद द टॉर्ट ऑफ बैटरी, और उसमें उसने कहा है कि बैटरी जो है वो एक्सप्रेसली एक्सक्लूड करती है किसी भी सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट टच को, राइट. उसके अंदर हमारे पास टच होना बड़ा ज़रूरी है, कांटेक्ट होना ज़रूरी है. वो इनडायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, बट टच होना ज़रूरी है. वेयर एज जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे हीट होगी, स्मोक होगी, लाइट होगी, वो आमतौर पर बैटरी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती. तो यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि अगर टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस के अंदर फिजिकल नेचर ऑफ लैंड में इंटरफेरेंस है, तो उस इंटरफेरेंस को हम क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जहाँ पर इंटरफेरेंस आपकी बाकी चीज़ों से हो सकती है, इंटेंजिबल चीज़ों से हो सकती है, लाइक स्मेल से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, ओडर से हो सकती है, ग्लेयर से हो सकती है. तो यहाँ पे हमें विजुअल इंट्रूजन को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए. इसी तरह बाय फोकसिंग इंस्टेड on the protected interest of land enjoyment, the Supreme Court avoided these arbitrary distinctions. जो खाम खा कोर्ट ने सिंपल ये कहा कि क्योंकि जो enjoyment of land है अगर वो मुतासर हो रही है तो वो न्यूसेंस है. तो ऑथर इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है कि ये जो आर्बिट्री और अनफेयर डिस्टिंक्शंस थी इनको अवॉइड किया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने. लॉर्ड सेल्स ऑल्सो रिकग्नाइज दैट विजुअल इंट्रूजन में इंटरफेयर विद द इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जस्ट एज सीरियसली एज डस्ट, नॉइज और स्मेल्स एज पर 176. Excluding such interference would be illogical. The decision also aligns the nuisance law with the Supreme Court's broader approach to tort law, as illustrated by R. Jolla versus Secretary of State for Home Department 2021. ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको 2-3 दफ़ा ऑथर ने साइट किया और इसके ऊपर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन भी आ सकता है. सो कीप दिस केस इन माइंड. R. Jolla versus Secretary of State for Home, where the court held that false imprisonment is not limited to physical restraint, but instead concerns essential interest of liberty being compelled to remain in particular place, which may be interfered by various means such as electric or electronic tagging. So at para number 24. So court ने खुद भी इसको refer किया था
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस केस को, और ऑथर भी इसको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पे रेफर कर रहा है। विजुअल इंट्रूजन कैन कॉन्स्टिट्यूट न्यूसेंस, तो फाइनली वो अपना व्यू भी यहाँ पर दे रहा है। द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड अर्लियर अथॉरिटीज दैट समटाइम्स बीन इंटरप्रेटेड एज एक्सक्लूडिंग mere overlooking. And the author notes that the Supreme Court has rightly moved away from the earlier authorities, which have been interpreted as precluding liability for mere overlooking. Lord Leggett observed that authority for such a rule was actually very limited. Earlier decisions such as Victoria Park Racing were distinguishable because they involved no interference with the enjoyment of land itself, but rather complaints about interference with profitable conduct of business. तो जो पिछली अथॉरिटी थी विक्टोरिया पार्क रेसिंग वाली, उसको कोर्ट ने completely distinguish किया, और ऑथर कह रहा है कि ये distinction बिल्कुल सही थी. The Supreme Court decision therefore provides a principal clarification on nuisance law by emphasizing that the tort protects the use and enjoyment of land, and the interference with such interest may occur by means including visual इंट्रूजन. सो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा है ऑथर का भी, जो कि अलाइन कर रहा है विद द व्यू ऑफ द यूके सुप्रीम कोर्ट यूनानिमस डिसीजन दैट विजुअल इंट्रूजन मे अमाउंट टू or can amount to nuisance because it interferes with the use and enjoyment of the land rather than mere overlooking, जैसे कि previous law था. Now, the problematic part to something that the author do not agree with is the common and ordinary use of the land requirement. And this second issue is something that the author thinks that the court should have decided differently. And here, the author also aligns with the argument put forward by Manjay. So, अब जरा इस argument को देखते हैं. So, the second key issue, common and ordinary use of land as central organizing principle for private nuisance, is less convincing and would create greater problems in future cases as per the author. According to Lord Leggett's reasoning, the claimant cannot complain in nuisance if their own use of land is not ordinary, and defendant who substantially interferes with the claimant ordinary use will nevertheless escape liability of their own activity represents a common and ordinary use of land in the locality. In Fern, Lord Leggett considered that the case is straightforward because, in his view, these conditions were satisfied. First, Lord Leggett said that the claimant's use of their flat was ordinary, and second, that Tate's operation of public viewing gallery was not common and ordinary use of the land in the locality. Third, constant observation of the flat constituted substantial interference with the claimant's enjoyment of the land as per para 48. Once these elements were established, Lord Leggett concluded that the issue, such as self-help remedies, for example, installing curtains and films, and public interest in operating the viewing gallery was irrelevant liability, though they might be relevant at the remedial stage. Now, the author then highlights the problem with this reasoning. This reasoning raises several difficulties. He says, while it was undisputed that the visual intrusion constituted substantial interference, a finding already established by the trial court, and the classification of the parties' respective use of land as ordinary and abnormal is far less clear out. So substantial interference तो definitely थी, but ordinary and abnormal usage का जो problem थी वो एक issue था. Lord Leggett simply asserted that the claimants were using their property in common and ordinary way, yet the findings of the trial judge, that is Manjay, suggested otherwise. Manjay concluded that the claimant's particular use of glass-walled winter gardens combined with their failure to adopt protective measures such as curtains or blinds was uncharacteristic within the neighborhood. कह रहा है कि बाकी बिल्डिंग्स के अंदर ऐसे नहीं था, उन सब ने, उनके पास भी ग्लास विंडोज़ थी, लेकिन उन्होंने सब ने प्रोटेक्टिव कर्टन्स या कुछ इस तरह की चीज़ लगाई हुई थी कि जब उनको प्राइवेसी चाहिए तो वो आगे कर देते थे. Similarly, although Lord Leggett characterized the Tate Viewing Gallery as an exceptional use of land in the locality, Manjay had found that there was nothing objectionable about operating a public viewing gallery in that area, and that providing panoramic views of London was not an unreasonable within the local context. So इतनी हाई बिल्डिंग के अंदर ऑब्जर्वेशन डेस्क बनाना एक बिल्कुल कॉमन चीज़ थी, अनरीजनेबल नहीं था. दो बातें, यानी यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स रेज हो रहे हैं. पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि जो मैन जे ने कहा कि जो क्लेमेंट्स का ग्लास हाउसेस या ग्लास अपार्टमेंट्स का इस्तेमाल था, जिस तरह से उन्होंने प्राइवेसी या मिटिगेटिंग फिल्म्स को नहीं लगाया हुआ था, वो एक अनरीजनेबल सी चीज़ थी, अनकैरेक्टरिस्टिक था उस नेबरहुड में. और दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसी लोकेलिटी के अंदर ऑब्जर्वेशन डेस्क बनाना या व्यूइंग डेस्क बनाना वो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ थी. आप अर्बन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं.
नाउ साथ ही उसमें जो ऑथर है वो रोल ऑफ एपेलेट कोर्ट्स की भी बात करता है. पार्ट ऑफ द डिसएग्रीमेंट देयरफॉर कंसर्न्स द प्रॉपर role of appellate court. As Lord Sales emphasized in the dissent, the appellate court should exercise caution before overturning the trial judge's evaluative conclusion, particularly where the trial judge has heard extensive evidence and inspected the site personally. So, a question of fact के ऊपर disagreement है. More fundamentally, however, the disagreement exposes uncertainty surrounding the concept of common and ordinary use. If the availability of self-help remedies such as curtains is irrelevant once it is established that the claimant's use of land is ordinary, it is unclear why such factors should not be considered when determining whether the claimant's use is ordinary in the first place. सो बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पर नज़र आ रही है कि जब ट्रायल कोर्ट ने सारी चीज़ को डिटर्मिन कर लिया था तो एपलेट स्टेज के ऊपर उसकी रीजनेबलनेस को या उसके ऑर्डिनरी यूजेस को कैसे चैलेंज किया जा रहा है. वो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड, ही वाज द वन जिसने जाके मौके पे चीज़ों को देखा था. सिमिलरली अ डिफ़िकल्टी अराइजेज विथ रिगार्ड्स टू पब्लिक इंटरेस्ट. यहाँ पर भी ऑथर ने उसी व्यू से अग्री किया जो मैन जे का और हमें लॉर्ड सेल्स के डाइसेंट में नज़र आता है. ऑल्दो लॉर्ड लेगेट insisted that the public interest considerations should only arise at the remedy stage, it is difficult to separate public interest from the assessment whether the particular use of land is ordinary within the locality. तो लॉर्ड लेगेट ने कहा था कि तो रेमेडी के देखे स्टेज पे देखा जाएगा कि डैमेजेस होनी चाहिए या इंजंक्शन होनी चाहिए, उसकी बेसिस पे हम देखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट कंपीटिंग का पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज. लेकिन हैरी हारन ये आर्ग्यू कर रहा है कि ये कैसे सेपरेट किया जा सकता है कि आप एक चीज़ को रेमेडी स्टेज पे देखेंगे और पहले आप उसको होल्ड कर रहे हैं कि वो न्यूसेंस है. For example, the public benefit of operating a viewing platform in cultural institutions such as Tate Modern would reasonably be viewed as a factor indicating that such use is ordinary in urban settings. As Maria Lee, जिसका एक article has argued in her analysis of public interest in nuisance law, the boundary between private rights and collective interest in nuisance cases is often blurred. Because the majority judgment places considerable emphasis on the notion of common and ordinary use, these conceptual uncertainties are likely to be addressed by the lower courts in future cases. सो आर्थर ने एक बड़ा मज़े का ये आर्ग्यूमेंट किया है कि जो मेजॉरिटी जजमेंट है जिसमें जिसने कंसिडरेबल एम्फेसिस किया ही कॉमन एंड ऑर्डिनरी यूज़ पे है, ये अनसर्टेनिटी एक प्रॉब्लमेटिक इशू रहेगा कल को जो ट्रायल कोर्ट्स के अंदर विजुअल इंट्रूजन के केसेस आएंगे, क्योंकि उनके लिए ये डिटर्मिनिंग फैक्टर इतना क्लियर कट नहीं होगा बिकॉज आपने ना तो पब्लिक इंटरेस्ट को टेक इनटू अकाउंट किया है, ना ही आपने इस चीज़ को टेक इनटू अकाउंट किया है कि उस लोकेलिटी की नेचर क्या थी, राइट. सो यहाँ पे उसका एक क्रिटिसिज्म नज़र आ रहा है. और फिर ऑथर जो है वो अलाइन करता है लॉर्ड सेल्स की अप्रोच के साथ. सो इन कंट्रास्ट द डिसेंटिंग अप्रोच ऑफ लॉर्ड सेल्स ऑफर्स अ मोर फ्लेक्सिबल एंड बैलेंस्ड फ्रेमवर्क, हैरी हारन सेज, rather than relying primarily on the concept of common and ordinary use. Lord Sales emphasized that the traditional nuisance principle, that is reasonable user and reciprocal tolerance between neighbors, sometimes described as principle of give or take. This approach requires the court to consider range of factors, including the nature and extent of the interference, the character of locality, and the claimant's own use of land, and the availability of protective measures. Such an analysis reflects a classical nuisance principle articulated in Banford versus Turnley. तो यहाँ पर ऑथर जो है उस ट्रेडिशनल अप्रोच को जब भी न्यूसेंस का केस आता है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है उस अप्रोच का जिक्र कर रहे हैं कि सारे फैक्टर्स को टेक इनटू अकाउंट करना है, लोकेलिटी कहाँ पे है, प्रोटेक्टिव मेजर्स कितने लिए गए थे, किस किस हद तक इंटरफेरेंस हो रही थी, किस हद तक रोक की जा सकती थी, इन सब फैक्टर्स को देखना, विच एम्फेसाइजेस ऑन म्यूचुअल टॉलरेंस बिटवीन द नेबरिंग ऑक्यूपायर्स. मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज हैं उनको बैलेंस आउट करना है आपने. इंटरेस्ट ऑफ द क्लेमेंट लैंड ओनर को भी बैलेंस करना है और इंटरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट, बिकॉज दोनों एट द एंड ऑफ द डे अपने लैंड को एंजॉय करना चाह रहे हैं. लॉर्ड सेल्स ऑल्सो सपोर्टेड दिस अप्रोच बाय साइटिंग द अथॉरिटीज such as Cambridge Water and Co. Eastern counties. Similarly, Southwark, London Borough Council versus Mills, and Bar versus Biffa West Waste Services. All of these emphasize that nuisance involves an objective balancing of the interest in particular locality. तो सारी चीज़ को देख के आपने balancing interest को compete करना होता है. Academic commentary including Tony Weir's introduction of tort law, similarly highlights the importance of reasonableness and reciprocity in nuisance doctrine. तो इसको जो है वो ऑथर सपोर्ट कर रहा है कि रेंज ऑफ फैक्टर्स डिटर्मिन करके हमें
देखना चाहिए था, जिस तरह लॉर्ड सेल्स ने देखा था, रादर देन मेयर सिंपली होल्डिंग के जी क्लेमेंट जो है उस अच्छा, लॉर्ड लेगेट का एक पॉइंट आपने याद रखना है। लॉर्ड लेगेट ने कहा था दैट द क्लेमेंट शुड नॉट बी बर्डन being a claimant to put up with the nuisance caused by the defendant. Yani, why should the claimant be considered as a victim to do some sort of act that will undermine the nuisance done by the defendant? तो लॉर्ड लेगेट का उस चीज़ के ऊपर एम्फोसिस था, वेयर एज जो हैरी हारन है वो इस बात पे अग्री कर रहा है जो लॉर्ड सेल्स ने किया है कि यार हम जब न्यूसेंस को देख रहे होते हैं तो हमने बैलेंसिंग ऑफ द कंपीटिंग इंटरेस्ट को देखना होता है, दोनों पार्टीज को। एक गिव और टेक वाला सिनारियो होना चाहिए, कुछ आपके आपने भी कुछ कर गिव करना है और आपने कुछ, दूसरी पार्टी ने कुछ टेक करना है, आपने कुछ लेट गो करना है, तो उस तरह मिल के चलना होता है। अच्छा, इसी तरह रीजनेबलनेस के एक आइडिया को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। Harry Aaron says that although the majority rejects reasonableness as a standard of organizing principle on the basis it is too open-ended and lacking precise content, this criticism may itself be overstated. So, कोर्ट ने जो reasonableness को थोड़ा सा चैलेंज किया है उसके ऊपर हैरी हारन का रिजर्वेशन है। As Lord Sales argued, reasonable user principle is not an abstract or indeterminate standard but rather a well-established doctrinal framework grounded in the idea of reciprocal tolerance between the neighbors. Consequently, dissent arguably provides a more nuanced and context sensitive approach to resolving nuisance disputes, particularly complex urban settings such as dispute between Tate and the Bankside residents. So, बड़ा interesting यहाँ पर उसने उसी concept को साथ align किया है जो कि लॉर्ड सेल्स ने थ्रू आउट बिल्ड किया है इन हिज डिसेंटिंग नोट। अच्छा जी, नाउ द ऑथर देन मूव्स ऑन। सो अगर आपने देखा हो कि ऑथर ने 3 पार्ट्स में अपने आर्गुमेंट को बिल्ड किया है। सबसे पहले उसने फर्स्ट इशू को कि विजुअल इंट्रूजन न्यूसेंस बन सकती है, उसको कंसिडर किया, उसने कहा जी बिल्कुल बन सकती है। उसके बाद दूसरा जो उसने रीजनेबल एंड ऑर्डिनरी यूज़ का जो जिक्र किया, उसके अंदर उसने डाइसेंटिंग अप्रोच ऑफ लॉर्ड सेल्स की उसको अडॉप्ट किया और उसने कहा है कि जो फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए थे कोर्ट को, जो मैन जे ने रीजनिंग फाइंड की है फिजिकली इंस्पेक्ट करने को प्रॉपर्टी को, वो ज़्यादा बेटर थी। जो तीसरा पार्ट है आर्टिकल का वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसमें हैरी हारन जो है वो जा रहा है वाइडर इम्प्लीकेशंस की तरफ, यानी इस केस का इम्पैक्ट किस तरह से आएगा। सो इसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करते हैं। नाउ द वाइडर इम्प्लीकेशन आर्ग्यूमेंट, द वाइडर सिग्निफिकेंस ऑफ द केस लाइज पर्टिकुलरली इन द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शन थ्रू प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसका जो बियॉन्ड का जो इस केस का बियॉन्ड न्यूसेंस से जो इम्पैक्ट है वो प्राइवेसी राइट्स और प्रॉपर्टी राइट्स के साथ लिंक्ड है। द डिसीजन जनरेटेड सिग्निफिकेंट पब्लिक डिबेट विद कमेंटेटर्स आर्ग्यूइंग दैट इट प्रायोरिटाइज द प्राइवेसी इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी रेजिडेंट्स ओवर द ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट इन द एंजॉयमेंट ऑफ द सिटी। अच्छा, एक तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है और ऑथर ने इसका जिक्र किया है कि जी इस केस ने बेसिकली अमीर लोगों के घरों को प्रोटेक्ट कर दिया और जो आम लोग बेचारे लंदन के व्यूज़ इंजॉय करना आ रहे थे, जिन जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में, ग्लास बिल्डिंग्स में नहीं रह रहे, उनको आपने जो है उनके राइट्स को ख़त्म कर दिया। नाउ क्रिटिक्स सजेस्ट दैट दिस डिसीजन कुड रिस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सेस टू अर्बन व्यूइंग स्पेसेस एंड रेजिडेंट्स ऑफ द ग्लास वॉल बिल्डिंग शुड रीजनेबली प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी थ्रू measures such as curtains rather than relying on litigation. These concerns were expressly and widely reported in media, contemporary commentary, and opinion pieces discussing the case social implication. Corin, Hubbard, and वेन राइट, ये सारे इनके आर्टिकल्स हैं जो कि ऑथर ने साइट किए। क्रिटिसिज्म इज ड्यू टू रॉन्ग बैलेंस बिटवीन पार्टीज, बिटवीन प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट। सो जो क्रिटिसिज्म है उसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि कंपीटिंग इंटरेस्ट जो हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के, उनको सही तरह बैलेंस आउट नहीं किया गया विद दॉट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। द क्रिटिसिज्म इज नॉट नेसेसरीली दैट न्यूसेंस लॉ शुड नेवर अप्लाई टू विजुअल इंट्रूजन। अच्छा, एक मज़े की बात यहाँ पर मैं करना चाहूँगा, ये जो आर्ग्यूमेंट था ना जो कुछ लोगों का, कुछ ऑथर्स का, ये एक्विजिशन थी कि कोर्ट ने जो है वो वेल्दी ओनर्स को प्रोटेक्ट, ओवर प्रोटेक्शन ऑफर करती है, ये हैरी हारन कहता है कि ये गलत अप्रोच है, ये गलत क्रिटिसिज्म है, ये अप्रोच ठीक नहीं है। अलबत्ता ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल जायज़ है कि बैलेंस आउट नहीं किया गया बिटवीन द कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। सो द क्रिटिसिज्म is not necessarily that nuisance laws should never apply to visual intrusion, but rather to the extent of privacy protection afforded in the case was excessive, because the court refused to consider factors such as states planning permission, the availability of self-help remedies, and the public benefit of viewing platform at the liability stage.
The author agrees with this critique. As discussed earlier, the majority narrow focus on the common and ordinary use of land meant that the broader considerations, such as public interest, were excluded from liability analysis, which helps explain the strong public reaction. So, कोर्ट हैरी हारन जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से द कोर्ट से डिसएग्री करता है कि जो कोर्ट ने कॉमन एंड ऑर्डिनरी यूज़ ऑफ लैंड को एक बड़ा ही आर्टिफिशियल सा मीनिंग और एक नैरो मीनिंग दे दिया, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को, कंपीटिंग इंटरेस्ट को कंसिडर ही नहीं किया, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस को कंसिडर नहीं किया, उसकी वजह से सारा क्रिटिसिज्म जनरेट हुआ है। और इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिंग द रिच ओनली के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया है, द ऑथर रिजेक्ट्स द प्रोपोजिशन दैट द केस वाज डेवलप्ड टू प्रिविलेज द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी। तो ये जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म है कि जी इस केस ने अल्टीमेटली अमीरों को प्रोटेक्ट किया है, इसके ऊपर ऑथर जो है वो कहता है नहीं, ये क्रिटिसिज्म जायज़ नहीं है कोर्ट के खिलाफ। द केस रिवील्स अ डीपर स्ट्रक्चरल इशू इन इंग्लिश लॉ दैट प्रॉपर्टी होल्डर्स मे एंजॉय स्ट्रॉन्गर protection of their physical privacy than other individuals। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट इसने पिक किया और इसने कहा है कि यहाँ पे ये तो नहीं बनता कि इसने रिच क्लेमेंट्स को प्रोटेक्ट किया, बल्कि ये ज़रूर एक आर्ग्यूमेंट बनता है कि जनाब जो इंग्लिश लॉ है उसकी डेवलपमेंट प्राइवेसी लॉ के ऊपर इस नज़र से ज़रूर हो चुकी है कि प्राइवेसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि लैंड ओनर्स के साथ अटैच हो गया। तो अगर तो आपका इंटरेस्ट इन लैंड है तो आप न्यूसेंस का क्लेम कर सकते हैं जहाँ पर आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही होगी। सो द इंग्लिश लॉ फेमसली लैक्स जर्नल टॉट इन ऑफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एज confirmed in the case of Wainwright versus Home Office, and there is no recognized tort equivalent to the American concept of intrusion upon seclusion, originally articulated by William Posser. Now, such tort exist in other jurisdictions, for example, including Canada in case of Jones, similarly, the New Zealand in C versus Holland, but English law has instead developed privacy protection through फ्रैगमेंटेड लीगल डॉक्ट्राइंस। तो ऑथर ने एक बड़ा अच्छा एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिया है जहाँ पर उसने कनेडियन जुरिस्डिक्शन का, न्यूजीलैंड की जुरिस्डिक्शन का ये बताया है कि प्राइवेसी के राइट्स उन जुरिस्डिक्शन में, इंट्रूजन अपॉन सिक्लूजन जैसे राइट्स अमेरिका की जुरिस्डिक्शन में बिल्कुल मौजूद हैं। यूके में तो ये लॉ था ही नहीं कि आपको अगर कोई व्यू कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसमें प्राइवेसी की प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो बड़ा लिमिटेड था। और इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग थिंग कि एटलीस्ट आपने न्यूसेंस के अंदर प्राइवेसी प्रोटेक्शन को इंक्लूड किया, बट इट इज़ देन लिंकिंग इट अप विद द इंजॉयमेंट ऑफ द लैंड, जो कि शायद बहुत से लोग, फॉर एग्जांपल अगर आप एक हॉस्पिटल में हैं और आप एक हॉस्पिटल बेड में हैं, तो अगर आपकी वहाँ पर प्राइवेसी ब्रीच हो रही है तो वहाँ पर आप न्यूसेंस क्लेम नहीं लेके आ सकते बिकॉज यू हैव नो इंटरेस्ट इन दैट लैंड। तो academic commentary, particularly by Nicole, has emphasized that the distinction between informational privacy and physical privacy, um, the later referring to situations where a person is watched, listened to, or otherwise sensed without ऑथराइजेशन। सो एक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग व्यू है जो निकोल ने मेक किया है इंफॉर्मेशनल एंड फिजिकल प्राइवेसी से रिलेटेड, जिसको उसने इस डिस्कशन का पार्ट बनाया है। नाउ एन ऑल्टरनेटिव क्लेम, द मिस यूज़ ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज़ समथिंग जो कि यूज़ किया जा सकता था फॉर दिस लॉ एज वेल, लेकिन इसको नहीं कंसिडर किया गया। इसके ऊपर भी ऑथर ने एक डिटेल डिस्कशन किया। अच्छा, सो इस पे वो कहता है कि इन फर्न the residents face significant legal difficulties when attempting to protect their privacy because English law offers no direct cause of action for physical privacy invasion. One possible claim could have been in the misuse of private information. That is the tort that evolved from breach of confidence following the incorporation of Article 8 of and Article 10 of the ECHR into English law, and particularly the case of Campbell versus Mirror Group Newspapers Limited, and later recognized as a standalone tort in Widdle Hall versus Google Inc. Some scholars have argued that this tort could potentially extend to protect against physical privacy intrusions as well as informational privacy. Alternatively, the residents might have pursued the claim under the data protection legislation, particularly the UK GDPR and the Data Protection Act of 2018, on the basis that the photographs taken from the viewing platform constituted a processing of personal
data. However, such claim would have required the court to balance the claimant's privacy rights against the competing interests such as public freedom of expression or legitimate interest at the liability stage. तो बेसिकली ऑथर ने ये आर्ग्यू किया है कि ऑल्दो के क्लेमेंट्स के पास ये राइट तो था कि वो ऑल्टरनेटिव एरियाज़ में जा सकते थे, मिसाल के तौर पे विडहॉल वर्सेस गूगल के मुताबिक वो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को भी यूज़ कर सकते थे, आर्टिकल 8 के ऊपर भी बात कर सकते थे ECHR की, बट उसके अंदर कंपीटिंग इंटरेस्ट, फंडामेंटल इंटरेस्ट, यानी एक तरफ आपका राइट ऑफ प्राइवेसी है तो दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर्टिकुलरली, दोनों राइट्स क्योंकि क्वालिफाइड राइट्स हैं तो उसमें बैलेंस आउट करना पड़ेगा कोर्ट को कि किस हद तक किसका राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, विच माइट हैव प्रोड्यूस अ लेस फेवरेबल आउटकम फॉर द क्लेमेंट्स। तो हैरी हारन कहता है कि अगर ये इस तरह का क्लेम आ भी जाता तो इट वुड हैव बीन लेस फेवरेबल। द ऑथर नोट्स दैट द क्लेमेंट्स नॉट चूजिंग दिस पाथ वाज अ वाइज स्ट्रैटेजी ऑन पार्ट ऑफ द क्लेमेंट्स। इसी तरह कीपिंग इट स्ट्रिक्टली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जो स्टार्ट में एक ऑब्वियसली पॉइंट रेज हुआ था कि आर्टिकल 8 को इन्वोक करने की कोशिश की गई थी बिफोर मैनजे, लेकिन वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। इंस्टेड द रेजिडेंट्स फ्रेम देयर क्लेम प्राइमरली थ्रू प्राइवेट न्यूसेंस टुगेदर विद द डायरेक्ट रिलायंस ऑन आर्टिकल 8 ironically because the Tate Modern was not considered a public authority for the purpose of Human Rights Act. A direct Article 8 claim would have not succeeded. This ultimately benefited the claimants because the Supreme Court decided the case entirely based within the property law principles, effectively sidelining Article 8 of the ECHR. Both the majority and minority judges acknowledged that reliance on Article 8 would unnecessarily complicate the case, and therefore the court recognized visual intrusion as an actionable in nuisance without needing to engage with the ECHR framework as per para 113 and 206. By framing the dispute as property right issue, the claimant arguably obtained a stronger form of privacy protection than would have been available under the other legal doctrines such as privacy doctrine or the ECHR Article 8 law. So बड़ा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है, कोर्ट कह रही है, सॉरी हैरी हारन कह रहा है कि ये जो क्लेमेंट्स ने प्राइवेट न्यूसेंस के अंदर आके अपना क्लेम यहाँ पे फाइल किया, ये उनकी लक थी और उनको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेमेडी अवेलेबल होगी जिसके अंदर कोर्ट जो है कंपीटिंग इंटरेस्ट में ज़्यादा तौर पे नहीं गई, वो प्रोटेक्शन ऑफ लैंड के ऊपर रिलाई करते रहे हैं, एंड दैट वुड हैव बीन अ स्मार्ट एंड वाइज मूव। अच्छा, लेकिन जो इसका मेन रीज़न है वो यही है कि जो इसका लिमिटेड स्कोप है फॉर दोज हैविंग राइट्स इन प्रॉपर्टी, उसको भी हाईलाइट करता है हैरी हारन कि मतलब बेशक न्यूसेंस को एक्सटेंड तो किया गया है प्राइवेसी लॉ के लिए, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है न्यूसेंस के साथ इसको लिंक करने का प्राइवेसी लॉ को, वो ये है कि आपका इंटरेस्ट इन लैंड होना चाहिए। द डिसीजन देयरफॉर हाईलाइट्स एन इम्बैलेंस इन इंग्लिश लॉ। ये हैरी हारन का बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। Property holders with legal interest in land, therefore standing to sue in nuisance, may now obtain significant protection under sensory intrusions, including visual surveillance, because nuisance protects the enjoyment of property. The author is critical of this approach, as it simply restricts protection of privacy to those who have interest in land without proving the competing interest. This principle was reaffirmed by the Supreme Court, which confirmed the only individual with sufficient proprietary interest in land may bring a nuisance claim as per para 10. By contrast, individuals who experience equally intrusive surveillance in places where they do not hold property rights, such as hospital patient, hotel guest, or visitors, may have far weaker claim of legal protection. So, ये बड़ा interesting limitation उसने point out की है. In this way, Fern reinforces traditional property principle that a person's home is their castle, a point noted by Lord Sales when emphasizing the importance of privacy within home at para number 176 of the judgment. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मैं हैरी हारन के इस पॉइंट से अग्री करता हूँ। मेरे ख्याल से प्राइवेसी को सिर्फ घर के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए था। प्राइवेसी एक ऐसा राइट है जो पर्सनल राइट है, प्रोप्राइटरी राइट नहीं है। पर्सनल राइट यानी इनफरादी तौर पर एक शख्स को मिलना चाहिए। तो अगर आपकी होटल के अंदर कोई कैमरा लगा के आपकी इंट्रूजन करता है तो डेफिनेटली उसके पास डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत तो रेमेडीज़ होंगी ही होंगी, बट ही शुड हैव द रेमेडी अंडर न्यूसेंस एज वेल। लेकिन क्योंकि न्यूसेंस का पूरा डॉक्ट्राइन इंटरेस्ट इन लैंड के साथ एसोसिएटेड है, एज पर द लॉ ही कैन नॉट हैव अ क्लेम। अब जब आपने विजुअल इंट्रूजन को न्यूसेंस के साथ लिंक कर दिया तो ऑटोमेटिकली उन लोगों का स्कोप लिमिट हो गया बहुत ज़्यादा।
वाइडर इम्पैक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसके ऊपर भी हैरी हारन ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन की है। इसका मैंने जिक्र पहले भी किया था। द इम्प्लीकेशन ऑफ द केस में एक्सटेंड फर्दर टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स फॉलोइंग द रीजनिंग इन फर्न प्रॉपर्टी ओनर्स में इंक्रीजिंगली यूज न्यूसेंस क्लेम्स टू चैलेंज मॉडर्न सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज सच एज स्मार्ट डोरबेल, सीसीटीवी कैमराज और होम सिक्योरिटी कैमराज। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर का कैमरा किसी के टेरेस की तरफ डिस्प्ले कर रहा है तो क्या कैन इट अमाउंट टू अ विजुअल इंट्रूजन? द अर्लियर केस ऑफ फेयरहर्स्ट वर्सेस वुडार्ड involving intrusive smart surveillance devices demonstrates how the disputes may arise. The reasoning in Fern also raises possibility that nuisance claims may extend beyond neighboring landowners, potentially covering remote surveillance activities that interfere with the enjoyment of property. In extreme scenarios, this reasoning might be even lead to claims against technology companies whose devices capture private conversations within homes, as reported in relation to smart speaker devices such as Amazon's Alexa or Siri for that matter. कंपैरिजन विद अदर टॉट, अच्छा अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ऑथर ने वाइडर इम्प्लीकेशंस की हेडिंग के अंदर कवर किया है, और वो है कि इसका बैटरी के साथ क्या लिंक होना चाहिए हो सकता है। फ्रॉम अ ब्रॉडर डॉक्ट्रिनल perspective, Fern also connects with the Supreme Court earlier reasoning in R. Jolas versus Secretary of State for Home Department, where the Supreme Court rejected rigid requirement of physical interference in the tort of false imprisonment. तो आपको पता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में एक लॉ था कि जी आपको एक्चुअली में फिजिकली रिस्ट्रेन करना था। जोलास के केस में भी नज़र आ रहा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग जो है वो भी एक इंटरफेरेंस समझी गई थी, फिजिकल इंटरफेरेंस समझी गई थी। टुगेदर दीज केसेस इंडिकेट अ ट्रेंड in English tort law towards focusing on an underlying interest protected by the torts rather than the formalistic requirements of फिजिकल इंटरफेरेंस। तो कोर्ट कह रही है कि एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट हमें, सॉरी हरिहरन कह रहा है कि हमें डॉक्ट्रिनल शिफ्ट नज़र आ रहा है जो कि हिस्टोरिकली हमें नज़र नहीं आता था। हिस्टोरिकली फिजिकल रिस्ट्रेंट के साथ चीज़ों को एसोसिएट किया गया था, फॉर्मलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स के साथ चीज़ों को एसोसिएट किया गया था। लेकिन जैसे आर वर्सेस जॉला के केस के अंदर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को भी बियॉन्ड फिजिकल इंटरफेरेंस के साथ रिफ्लेक्ट किया गया, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग डिवाइस का कॉन्सेप्ट था। इसी तरह फर्न के केस में वर्सेस टेट मॉडर्न गैलरी के अंदर हम देख रहे हैं कि विजुअल इंट्रूजन को न्यूसेंस के साथ डेवलप किया गया। दिस डेवलपमेंट रेजेस पॉसिबिलिटी दैट अदर टॉट्स सच एज बैटरी ट्रेडिशनली अंडरस्टूड टू रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट माइट ऑल्सो इवॉल्व टू एड्रेस forms of sensory intrusion. Classic authorities such as Collins versus Wilcox describe battery as protecting bodily integrity, and some scholars have suggested that this tort might one day extend to serious sensory intrusion even without physical contact. So, based on false imprisonment, Jola's case, and based on Fern, the author is making an assessment कि yes, it is possible कि कल को बैटरी को भी extend करके beyond physical contact की law develop कर दिया जाए. Conclusive remarks. Ultimately, Fern therefore represents both an important development in privacy protection and potential source of inequality in legal protection. While the decision opens new avenues for protecting physical privacy, particularly in digital age, it does so primarily through property rights, meaning that those with proprietary interest in land may enjoy significantly stronger legal protection than individuals without such interest. Whether English law will continue to tie physical privacy protection so closely to property ownership remains an open question for future development. So that is the overall discussion of the article. So हमने इसको 3 पार्ट्स के अंदर कवर किया है। जो आर्ग्यूमेंट है हैरी हारन का, बल्कि उसको इस तरह से कर लेते हैं कि स्टार्ट में वो इंट्रोड्यूस कर रहा है आर्टिकल को कि आर्टिकल किसके बारे में है, उसके बाद वो एक ब्रॉडर ओवरव्यू देता है, फिर वो बताता है कि जो जनरल फ्रेमवर्क है न्यूसेंस का वो क्या है, फिर वो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में जाता है, हाई कोर्ट मैन जे की जजमेंट में डिटेल में जाता है, फिर वो कोर्ट ऑफ अपील की जजमेंट में जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, मेजॉरिटी जजमेंट जो लॉर्ड लेगेट ने ऑथर की है उसको डिटेल में डिस्कस करता है, और फिर लॉर्ड सेल्स की माइनॉरिटी जजमेंट को डिस्कस करता है। उसके बाद फिर वो अपने कमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहला उसका पॉइंट ऑफ व्यू है जो जिससे उसने अग्री किया है विद दी क्या उसको कहते हैं, विद द विजुअल इंट्रूजन, विद विजुअल इंट्रूजन बीइंग अ न्यूसेंस, उसको उसने अग्री किया। उसने कहा जो सुप्रीम कोर्ट की यूनानिमस अप्रोच है मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, एंड इट शुड हैव बीन लाइक दैट। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है कॉमन एंड ऑर्डिनरी यूज़ वाला, उसमें उसने क्रिटिसाइज़ किया और उसने वो अप्रोच अडॉप्ट किया जो मैन जे ने और सेल्स एल जे ने अडॉप्ट की है,
इन दैट डिसेंटिंग नोट ऑफ द यूके सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। उन्होंने कहा कि जो कॉमन और ऑर्डिनरी यूज़ के अंदर जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स थे, जो सर्कमस्टांसेस थे, उनको कोर्ट ने ना कंसिडर करके गलत फैसला किया है, जिसके ब्रॉडर इंप्लीकेशंस होंगे और ट्रायल कोर्ट के लिए ये मुश्किलात पैदा करेगी कल को। और तीसरा, हैरी हारन ने इसका वाइडर इम्प्लीकेशन देखी, और वाइडर इम्प्लीकेशन में मल्टीपल उसने कंपैरेटिव एनालिसिस किए हैं, जिसमें उसने दूसरे टॉर्ट्स के साथ भी किए हैं, डाटा प्राइवेसी लॉ के साथ भी उसने कंपैरिजन किया है। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड के साथ भी उसने कंपैरिजन किया। सो दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। अब ज़रा कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के लिए वैसे ही निकाले हैं, 6 क्वेश्चन जो आप कंसिडर कर सकते हो, वो क्या हैं? Why does the author consider Supreme Court recognition of visual intrusion as nuisance to be welcome development? तो इस पे आप अपना एक आंसर फॉर्म कर लें. How does the author respond to the traditional argument that the nuisance require physical interference with the land? इसको किस तरह से respond किया author ने? Critically examine the author's argument that the Supreme Court was correct to reject the requirement of physical interference in the private nuisance. Evaluate the author's criticism of Court of Appeal's reliance on planning law as appropriate mechanism for regulating overlooking. Critically assess the author's argument that the majority's reliance on common and ordinary use of land introduces doctrinal uncertainty. Why does the author believe policy argument against recognizing visual intrusion as nuisance is unpersuasive? So ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इस तरह के कुछ 10 और क्वेश्चंस भी बना सकता हूँ। इनके आंसर्स मैं अभी यहाँ पर नहीं दे रहा, इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा जो कि पेड होगी। सो आप अगर उसकी एक्सेस लेना चाहते हो तो यू कैन रीच मी आउट ऑन द इंस्टाग्राम एंड यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ द इंटायर टॉट जो सीरीज़ है, या बाकी जो भी आपके लेवल 5 के सब्जेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टी है, EU लॉ है, टॉट लॉ है। सो अगर आपको उनकी एक्सेस चाहिए, प्राइवेट एक्सेस चाहिए, तो यू कैन रीच मी आउट, आई कैन शेयर द डिटेल्स ऑफ हाउ टू गेट द प्राइवेट एक्सेस। आई होप कि आपको इस लेक्चर ने हेल्प आउट किया होगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि आर्टिकल किस बारे में है, क्या बात करता है। ये बहुत इफेक्टिव हो सकती है वीडियो कि अगर आप इसको बार बार सुन लेंगे तो टेक्निकली आप पूरे आर्टिकल को मल्टीपल टाइम्स कवर कर लेंगे। सो आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू इन द एग्जाम. Thank you very much, guys, for watching this. Take care.